briefly starting with the introduction, I am Professor Nadia Naseem, and I'm right now Professor of Histopathology at University of Health Sciences, Lahore. And I'm a PhD in histopathology, and right now I'm also the Pro Vice Chancellor of the university. So, being Pro Vice Chancellor, and I had also an experience of serving as a controller of examination of UHS for 2 years, and then registrar for nearly a year. तो ये इसलिए बताना जरूरी है कि ये तमाम जो असेसमेंट और ये स्ट्रेटजीज हैं, एंड बीइंग एन एकेडमिशियन और बीइंग अ प्रो वाइस चांसलर व्हिच इज एन एकेडमिक पोस्ट, सो हम इसको एक बिल्कुल डिस्कशन बेस्ड एक सेशन बना लेंगे ताकि हम डेफिनेटली इसको क्विकली गो थ्रू भी कर लें और जो हमारा इस वक्त लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं. बिफोर बिगिनिंग विद, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि आप लोग अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा दें, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट सेशन है and I'm not like very well acquainted with the participants who are listening to me. Thank you so much. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. Lieutenant Colonel Rahat Zia, Principal, College of Nursing, CMH Multan. All right. Thank you so much. Okay. Thank you. Anybody next, please? Quickly, या अगर आप chat box में लिखते जाएं, that would be easy because I just want to go through the कि मैं किन लोगों से या किस context में हमने आज interact करना है. इसलिए रिक्वेस्ट है कि सब अपना जल्दी से इंट्रोडक्शन करवा दें प्लीज. I'm Major from Institute of Nursing instructor over here. Institute of Nursing कहाँ पे? CMH Lahore Medical College. अच्छा, CMH Lahore Medical. Thank you so much. Dr. Faraz Noor, Assistant Professor of Orthopedics and Sahara Medical College, Narowal. Okay, thank you. कोई स्टूडेंट्स है इसमें, MBBS के स्टूडेंट्स इन 9 या 10 पार्टिसिपेंट्स के अंदर? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Major Samina Kosar. I am FNS officer and presently I am working in NICU, CMH Lahore. All right. Thank you so much, ma'am. Okay. So if we do not have any more introduction, so let's begin with the session. जो assignment आज की जो दी गई थी, that is formative and summative assessment as a part of the major assessments that is being done in your institutes, whether you are related to undergraduate or the postgraduate teaching programs. So definitely undergrad और postgrad के दरमियान एक बहुत मेजर लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन या स्पेशलाइजेशन होती है जिसको हमें देखना पड़ता है, और ये लैडर जो है मोर और मोर स्ट्रिंजेंट होती जाती है द वे एंड द मोर वी गो टुवर्ड्स द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स. सो इसको जो हमने बनाया है दैट इज बेसिकली फॉर द अंडर ग्रेजुएट टीचिंग के लिहाज से, क्योंकि मेजर बल्क हमारा वही है, और जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं उसके लिहाज से. आप सब भी असेस करते रहे होंगे, ऐसा मेरा ख्याल है कोई भी शायद नहीं होगा जिसने अभी तक मतलब who is not a part of assessment, formative, summative, teaching, learning. So quickly मेरा ख्याल है एक polishing exercise होगी, हम इसको go through करते हैं. So next, so assessment अगर हम define करें, so what do you think assessment is? Simple सादे लफ्जों में assessment क्या चीज होती है? May जी, sure, anyone. Ma'am, it is the process to assess the student's ability, student's knowledge, his experience and skills. Yes, knowledge, ability, skills and experience. Very good. So definitely जो भी learner है उसको किसी भी तरह से हमने उसके जो desired domain है जिनको assess करना है, that is assessment. Assessment, if we define it very formally, in education, not medical education particularly, in education is the process of gathering, interpreting, recording and using that information about pupils' responses to an educational task
that was assigned to him or her. डेफिनेटली डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा उसकी नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और उसके बाद उसका जो एक्सपीरियंस ओवर द ईयर जो काउंट हो रहा है या वो प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ असेसमेंट प्रोसेस. नॉर्सिनी, किसी को आइडिया है नॉर्सिनी कौन है? एनीबडी? मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल रिसर्च के अंदर नॉर्सिनी इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड द पायनियर ऑफ डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट इन मेडिकल एजुकेशन. मेडिकल का मतलब सिर्फ MBBS, BDS या डेंटल हिस्सा नहीं है, अलाइड, नर्सिंग, एवरीथिंग. सो फेमियर के ये प्रेसिडेंट हैं, रहे भी हैं, और ही इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोफेशनल जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ मिनी CX और आप पढ़ते होंगे वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट, ये सारे इनके डेवलप किए हुए हैं. एंड इनकी बुक है असेसमेंट में, अगर आप अभी आप शायद पढ़ भी रहे होंगे, आई एम नॉट श्योर, हार्डन्स में भी अगर आप पढ़ेंगे या असेसमेंट का मॉडल पढ़ेंगे तो वो नॉर्सिनी का ही है जो सबसे रिलायबल समझा जाता है. सो अकॉर्डिंग टू नॉर्सिनी, नाउ कमिंग back to the medical education, assessment involves testing, measuring, collecting and combining information and providing feedback. यहाँ पे वर्ड क्या आ गया जो पिछले वाली डेफिनेशन से मुख्तलिफ है, दैट इज फीडबैक. कि आपने टाइमली फीडबैक देना है स्टूडेंट को या लर्नर को, so that you and him or her, they may be knowing कि उनकी क्या deficiencies हैं, उनकी क्या strengths हैं, क्या weaknesses हैं, areas of improvement क्या हैं. So feedback का जो concept है वो नॉर्सिनी की तरफ से clinical education के अंदर पहली दफा आया था, पहले ये concept नहीं था. So assessment, if we, कोई आपसे पूछ सकता है कभी, अगर आपने कभी सुना हो या पढ़ा हो, होपफुली पहले भी आपको पता होगा, लैटिन वर्ड है assideare, जिसका मतलब है sit with. यानी असेसमेंट का मतलब हरगिज ये नहीं है जज करना, इसका कोई लफ्जी मानी अगर आप निकालें, ये जजमेंट नहीं है, ये इवैल्यूएशन नहीं है, ये टोटली इसका क्या मतलब है कि आपका साथ बैठना. तो जो वर्ड जो ये मतलब जब ये मतलब इवॉल्व हुआ था, तो असेसमेंट का मतलब था सिट विद द लर्नर. दिस इम्प्लॉइज दिस समथिंग वी डू विद एंड फॉर द स्टूडेंट and not to the student. इसका मतलब यही है, जो हम समझ रहे होते हैं असेसमेंट का क्या मतलब है, तो ये एक बेसिक कोर है जो हमें भी हमारी मेडिकल एजुकेशन के दरमियान में बताई गई थी कि असेसमेंट कभी भी एज अ इवैल्यूएटर, असेसर या स्टूडेंट को जज करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये दोनों टीचर और स्टूडेंट का एक इकट्ठा प्रोसेस होता है जिसमें उन्होंने इकट्ठे बैठ के ये लर्निंग आगे लेके जानी है, और उसी से असेसमेंट जो है वो प्रोग्रेस करती है. सो दैट इज द बेसिक कोर ऑफ असेसमेंट. पर्पस ऑफ असेसमेंट क्या होते हैं? डेफिनेटली हम सबको आइडिया है. द टर्म असेसमेंट रेफर्स टू द वाइडर वेराइटी ऑफ मेथड्स और टूल्स that educators or teachers use to measure and document students' learning process, skills और educational needs. बिल्कुल जैसा डॉक्टर साहब ने डेफिनेशन में बताया, assessment is an interactive process. अब यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि sitting with जो मतलब है उसका मतलब है ही यही कि ये one way channel नहीं है. It is an interactive process between the students and the faculty and informs the faculty how well their students are learning and what the faculty is actually teaching. So वही जो हमने बात की कि असेसमेंट का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि ये सिर्फ स्टूडेंट को जज कर रहा है. ये टू वे प्रोसेस है. ये उतना ही हमें खुद भी मेटाकॉग्निशन में अगर हम जाएं, स्टूडेंट भी जाए, ये हमें खुद भी हमारी जजमेंट या एवेल्युएशन बता रहा होता है और स्टूडेंट की भी बता रहा होता है. असेसमेंट इज ऑल्सो यूज्ड टू आइडेंटिफाई individual students' weaknesses and strengths, जिसका अभी हमने डिस्कस किया, so that educators can provide specialized academic support and educational programming or social services whatever they require. So this is not basically कि आपने उसको सिर्फ जज करना है कि तुम वीक हो, तुम पुअर हो. डेफिनेटली आपने उसको हेल्प आउट करना है, उसके लिए स्पेशलाइज एकेडमिक सपोर्ट करनी है, उसको ज्यादा स्पेशल टेस्ट लगानी है, उसको ज्यादा टाइम देना है या उसके लिए मैन्यूवर्स करने हैं. सोशल साइकोलॉजिकल मॉडल जो आपने डिफरेंट लर्निंग मेथड्स या मॉडल्स पढ़े होंगे अपने इस कोर्स के दौरान में, तो उसमें डेफिनेटली ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है असेसमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए. And when exploring assessment, there are 6 key questions which should be addressed. Simple है
कि वाई, क्यों मुझे, ये बच्चा भी कहता है कि क्यों पढ़ाया जा रहा है, और आप लोग कह रहे होते हैं कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं, व्हाट, हम क्या पढ़ा रहे हैं और बच्चा क्या पढ़ रहा है, हाउ, किस तरह से पढ़ा रहे हैं, क्या इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजीज हैं, व्हेन, किस पार्ट पे है, यानी कि ये स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर है, मिड सेमेस्टर है, फाइनल इवैल्यूएशन के करीब करीब है, और व्हेन का मतलब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्या फेजिंग है आपके एनुअल सिस्टम के अंदर, आपके सेमेस्टर सिस्टम के अंदर, कि किस पार्ट में उसको क्या पढ़ाया जा रहा है, बेड साइड के ऊपर पढ़ाया जा रहा है या उसको वहां पढ़ाया जा रहा है, सो दैट ऑल मेक्स योर लर्निंग एनवायरनमेंट। वेयर के अंदर ये चीजें आती हैं, एंड हु, कि किसको, who is being taught and who is teaching. So यहाँ पे आ जाता है कि स्टूडेंट्स जिनकी इंडक्शन हुई है हमारे मेडिकल सिस्टम के अंदर, हमारे नर्सिंग सिस्टम के अंदर, वो स्टूडेंट की लॉट कैसी है, या जो पढ़ा रहा है क्या वो इतना स्पेशलाइज्ड, या वो इतना उसकी एजुकेशनल स्किल्स या उसका टीचिंग स्किल्स इतनी स्ट्रांग हैं कि वो पढ़ा भी सकता है या नहीं। सो हु इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग्स, अगर आप सोचें कि अगर मुझे पढ़ाना आता है, अगर आपको पढ़ाना आता है, तो कोई भी एनवायरनमेंट हो, कोई भी बच्चा हो, किसी भी किस्म का कंटेंट हो, हम उसको बेस्ट डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन अगर हु आपका जो है वो कॉम्प्रोमाइज है, इन माय पर्टिकुलर ओपिनियन, चाहे वो आपका स्टूडेंट हो, चाहे वो आपका टीचर हो, तो उससे बैक पे जाएं, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट एंड व्हाई, ये पूरी बैक साइकिल जो है ये पूरी एक तरह से डिफ्लेट हो जाती है। So educators are required to provide a means of discriminating between students, learners and their needs. Definitely need हमने करनी होती है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब ये नहीं है कि हमने उनको जज करना है, उनको सजा और जजा की तरफ लेके जाना है, हमने उनकी नीड्स को एड्रेस करना है, और जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया उनको सपोर्ट देनी है। Motivate learners to seek greater knowledge in a particular area. नौशीनी की बार बार हर जगह वो यही लिखता है और अभी तक लिखते जाते हैं कि मोटिवेट करो लर्नर्स को, मोटिवेट करो उनकी, हर आप बुक पढ़ लें, हर चीज के एंड में आता है डिस्पाइट जजमेंट, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड, आपने मोटिवेट करना है क्योंकि वही जो लाइटर मोड में कहें या इसको थोड़ा साइंटिफिक मोड में कहें कि वो जिन्होंने मूवीज देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें वो जो एक टिपिकल मैसेज देता है ना कि आपने मरीज को जितनी मर्जी दवाइयां दें, जो मर्जी डायग्नोस करें, लेकिन अगर वो आपकी जादू की झप्पी वाली चीज है ना, तो आपका मरीज खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो नॉर्सिनी का कॉन्सेप्ट भी एग्जैक्टली यही है कि द वे यू विल मोटिवेट योर लर्नर, आप एक बुरे से बुरे, जो आपकी नजर में बुरा है या वीकर से वीकर स्टूडेंट जो है, उसको आप एक बहुत बेहतरीन तो नहीं हम कह सकते, बेस्ट नहीं, बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म पे ले जाके उसको फाइनली जब वो ग्रेड में आ रहा हो तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो मोटिवेशन इज द की मेथड, एंड फाइनली असेसमेंट is also needed to provide institutional quality assurance to key stakeholders. हम जो ये सब कुछ कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं कि हमारे इदारों को नाम चाहिए, रेपुटेशन चाहिए, नाम नहीं होगा, रेपुटेशन नहीं होगी तो कोई खान में नहीं जाना चाहेगा, कोई कॉन्सेप्ट्स में नहीं जाना चाहेगा, कोई अच्छे मेडिकल कॉलेज में, किंग एडवर्ड में नहीं जाना चाहेगा अगर नहीं अच्छा होगा। सो ये नाम जो इंस्टीट्यूट्स के जो हुए हुए हैं ये ओवर द इयर्स, उनके जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी वजह से, एंड डेफिनेटली रेगुलेटरी बॉडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जिस तरह हमारी है, नम्स है, वहां पे जो रेगुलेट कर रही है, जैम्बू है, बोलान यूनिवर्सिटी है, केपीके में खैबर यूनिवर्सिटी है, जो रेगुलेटर्स हैं इन कॉलेजेस के, उनकी रेपुटेशन इस स्टेक पे है। और उससे ऊपर एक फर्स्ट ईयर पे चले जाएं तो जो काउंसिल है हमारी, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, वो कैसा ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रही है, उस काउंसिल की रेपुटेशन और उसकी क्वालिटी एश्योरेंस जो है, ये 3 टियर प्रोसेस के अंदर असेसमेंट जो है इतनी हाई लेवल पे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करती है। सो मिलर्स पिरामिड, आई वुड नॉट गो इनटू द डिटेल, आप लोगों ने इससे पहले जरूर जो आपके सेशंस हमने पढ़ा होगा, डेफिनेटली वही चीज है, knows how, shows how and does. Mastery of skills and knowledge से आगे आप बढ़ते जाते हैं, and then you go towards the mastery, और वही बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, फैक्चुअल नॉलेज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग है, knows how, और उसके बाद आपने क्लिनिकल स्किल्स के अंदर, और आपने अगर एक्सपेरिमेंटल या साइंटिफिक स्किल्स के अंदर जाना है, इन विट्रो या वीवो दोनों के अंदर आपको उसकी वो स्किल्स देखनी है, लैब के अंदर या ऑन बेड साइड। सो मिलर्स पिरामिड का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है विद द असेसमेंट, कि आपने जो असेस करना है, व्हाट यू वांट टू असेस, दैट इज बेस्ड ऑन दिस पिरामिड। अगर आपने डस को असेस करना है तो आपका असेसमेंट मोडालिटी बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। अगर आपने शोज हाउ को करना है तो डेफिनेटली डिफरेंट स्कीम ऑफ टेस्टिंग आपकी होती है।
नोज के लिए बिल्कुल डिफरेंट होता है और नोज हाउ के लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग के लिए डिफरेंट कंस्ट्रक्ट या मतलब कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं असेसमेंट टाइप्स। थोड़ा सा मैं फिर सबको इन्वॉल्व कर लूँ, जस्ट आपके बैकग्राउंड नॉलेज से जितना आपने अभी अपना ये कोर्स या डिप्लोमा पढ़ा होगा, आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू, इन योर ओपिनियन व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एग्जाम। काइंडली प्लीज मुझे हेल्प आउट कीजिए इसको चॉक डाउन करने में। गुड एग्जाम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? मे आई मैम? जी श्योर श्योर। मैम फीजिबल हो, तो ये objective है हो। कि जो है ना करिकुलम से रिलेटेड होना चाहिए एग्जाम, ये नहीं कि आप पढ़ाते कुछ और हैं एग्जाम में कुछ और उठा कर दे रहे हैं। एग्जैक्टली, करिकुलर अलाइनमेंट, ठीक है। और मैम feasible फीजिबल हो कहा और किसी ने, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सही हो, उसमें कहा। और सब्जेक्टिविटी ना हो। सॉरी क्या ना ऑब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट एग्जैक्टली ना हो। एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव हो, बिल्कुल ठीक है। प्रिसाइज हो, फोकस्ड हो, ऑब्जेक्टिव हो। और वैलिड एंड रिलायबल हो। एग्जैक्टली दैट इज वर्ड। थैंक यू सो मच। वैलिड और रिलायबल हो। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ब्रीफली बता देंगे कि क्या चीजें होती हैं, क्या बलाएं होती हैं? वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ब्रीफली। Validity actually shows that those things which are going to teach, which are taught, is going to be included in the exam. According to that, assessment is done. That exam is valid. And Exactly. and reliable means the results that comes, तो वो according to need, according to your curriculum, वो अचीव हो, वो रिलायबल एग्जाम होता है। मैं बिल्कुल ठीक है। रिलायबल होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, करिकुलर अलाइनमेंट होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, डेफिनेटली नॉन ये मेजर। बायस होना चाहिए मैम, नॉन सॉरी, बायस, बायसेस नॉन नहीं होने चाहिए। एग्जैक्टली नॉन बायस होना चाहिए, ठीक है। ये वैलिडिटी की एक टाइप है। आप लोगों ने वैलिडिटी पढ़ ली हुई है एग्जाम में? वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी अभी क्या नहीं अभी पढ़ा हुआ? मैम ये एमसीक्यू बनाने में हमने वैलिडिटी पढ़ा था, जिसमें फेस वैल्यू और फेस वैलिडिटी, एग्जैक्टली, कंस्ट्रक्ट हाँ, कॉन्टेक्स्ट, वैलिडिटी, एग्जैक्टली ये वही चीज। कंटेंट वैलिडिटी थी और प्रेडिक्टिव एंड जी जी कंकरेंट जी वैलिडिटी। एग्जैक्टली, ये तो तमाम ये मैम डिफरेंट टाइप्स। बिल्कुल जी ठीक जी, है। ये यही वाली सारी जो है ये इस गुड एग्जाम की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी तो आएंगी ना, वैलिडिटी के अंडर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जी। बिल्कुल यही है और मैम वैलिडिटी जिसका, और रिलायबिलिटी भी डेफिनेटली उसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं, और वो भी यस इसी तरह ही मतलब हम उसको असेस करते हैं। तो यस मैम बिल्कुल। और मैम कंटेंट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कंटेंट जो आप पहले एजुकेट करेंगे उसी के मुताबिक एग्जैक्टली एग्जाम भी होना चाहिए, ना कि मतलब डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जो पढ़ाए तो फिर वही बनाए एग्जाम वो वाला एक एलिमेंट होना चाहिए। मतलब ये जो सबसे पहला पॉइंट था शायद मारिया ने दिया कि जी जी करिकुलम रिलेटेड होना चाहिए, करिकुलम के अकॉर्डिंग, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि करिकुलम के अंदर ही से अगर पढ़ाया भी जाए और उसी के अकॉर्डिंग फिर एग्जाम बनाया जाए तो मैम ये बेस्ट मतलब वो एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि एग्जैक्टली उस जो वो पूरा वो दिया हुआ है ना, मतलब एक स्टूडेंट को भी पता होगा कि मैंने इस एरिया में के अंदर अंदर रहना है, और फिर जो इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है या बना रहा है एग्जाम तो उसको भी पता होगा कि मैंने इसी लिमिट के अंदर ही बनाना है। एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच। ये हाँ तमाम चीजें जो बिल्कुल आपने बताई हैं, एग्जैक्टली वी आर जस्ट वी आर जस्ट गोइंग टू रिवाइज दैट इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so criteria for a good assessment, that is ओटावा कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी फेमस थी, 2011-12 में हुई। उसके बाद से उसी को ही आगे हम रिप्रोड्यूस करी जाते हैं। वैलिडिटी जिसका सबने बताया, कोहेरेंस है नंबर 1 पे। रिलायबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, स्कोर्स ऑफ एग्जामिनीज विल बी द सेम इफ रीटेस्टेड, अगर आप सेकंड कॉलम में देखें। और उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी है दैट इज टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी।
स्प्लिट हाफ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म। और अगर फर्स्ट ड्रॉ के थर्ड कॉलम में अगर हम जाएं तो वैलिडिटी को उन्होंने आगे से फर्दर कैरेक्टराइज इसलिए नहीं किया कि अकॉर्डिंग टू देम कि वैलिडिटी की जो भी टाइप्स अभी बताई हैं मैडम ने, दीज ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सो इक्विवेलेंस होनी चाहिए। थर्ड रो में अगर जाएं, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एन असेसमेंट यील्ड इक्विवेलेंट स्कोर्स, अ चैलेंज फॉर असेसमेंट इन द वर्कप्लेस। एजुकेशनल इफेक्ट उसका क्या है? The test motivates the student, those who take it, to prepare in a fashion that has educational benefit. और आपको डेफिनेटली एजुकेशनल इफेक्ट होना चाहिए कि उनको पता हो कि जी ये जो असेसमेंट हम देने जा रहे हैं इसका हमें फाइनली एंड में आउटकम क्या है, अचीव हमने क्या करना है, और इससे हमें या हाई स्टेक है, लो स्टेक एग्जाम है, डेफिनेटली ये एक गुड असेसमेंट को का पार्ट होते हैं। कैटालिटिक इफेक्ट होना चाहिए, ना कि एक प्रेशराइजिंग इफेक्ट या एक एनफोर्समेंट इफेक्ट होना चाहिए कि असेसमेंट प्रोवाइड्स रिजल्ट्स और जो फीडबैक स्टूडेंट्स को मिले वो उनकी लर्निंग को एनहांस करे। ये बार बार कहा जाता है कि जो भी फीडबैक दिया जाए स्टूडेंट्स को वो इस तरह से दिया जाए कि उनके अंदर कैटालिटिक इफेक्ट आए, ना कि उनके अंदर एक उनको अंडरमाइन करने के लिए या उनको प्रेशराइज होने का एक फीलिंग आ रही हो। फिजिबिलिटी बिल्कुल सही है, ऐसा एग्जाम प्रैक्टिकली या रिटन टेस्ट जो है वो डिजाइन किया जाए कि जिसके अंदर प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी जो है वो निकाल ली जाए। ऐसा उसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन ना हो कि वो बाद में आपके लिए एक टेस्ट तो आपने करवा लिया, उसका कंडक्ट इस तरह ना हो, उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिविटी या बहुत ज्यादा इन्विजिलेटर्स या इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत ना हो। तो फिजिबिलिटी भी देखनी होती है कि आप किस तरह से उसको कंडक्ट करा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक्सेप्टेबिलिटी, जो हर दफा हमारे हर इम्तिहान में हर स्टूडेंट का, हर पेरेंट का एक इशू होता है कि जी आउट ऑफ कोर्स आ गया, बहुत मुश्किल था, ये नहीं था, वो नहीं था। सो एक्सेप्टेबिलिटी तो वो चीज है जो कि शायद मेरा ख्याल है कि जितना भी आप बुक्स पढ़े हैं, जितना हम लोग जानते हैं, वो कभी भी शायद बहुत 100% जो है वो स्टूडेंट्स में या उनकी फैमिलीज में या स्टेक होल्डर्स में ना डेवलप हो सके। लेकिन डेफिनेटली जब आप उसको डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जब हम उनको डिफरेंट पैरामीटर्स पे एवेलुएट करें अपने टेस्ट को, तो ये चीज क्लियर हो कि उसमें कोई मेजर फ्लॉ नहीं था। सो एक्सेप्टेबिलिटी इज फॉर मोर एंड लेस इट्स फॉर दी वंस हु आर मेकिंग दैट असेसमेंट। सो असेसमेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं, क्विकली अगर हम गो थ्रू करें, फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट होती है। फॉर्मल वो होती है जिसमें आपके स्टैंडर्ड्स या ग्रेड्स या जो उसके रिकॉर्ड होता है। इनफॉर्मल असेसमेंट वो होती है जिससे आप रिकॉर्डिंग या ग्रेडिंग या उसको इवेलुएट नहीं कर पा रहे होते। सेकेंड फॉर्म ऑफ असेसमेंट है, क्योंकि ये डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड्स में है, सोशल साइंसेज में भी है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सबको मिला के बनी हुई है। तो ये उसके लिहाज से क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट्स होती हैं, सब्जेक्टिव होती हैं। कुछ ऐसी असेसमेंट्स मेडिकल एजुकेशन के अंदर या सोशल साइंसेज में हमें उसको सब्जेक्टिव लेके जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ कि उनमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल डेटा जो है वो हम नहीं अप्लाई कर सकते, एंड क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल बेस्ड होती हैं। एंड फाइनली फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, जिसको हम क्विकली अब गो थ्रू करेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट डेफिनेटली आप सब जानते होंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग that are typically administered multiple times during a unit course or academic program. Simple words में अगर इसको कहा जाए तो ये ongoing assessment का नाम है। ongoing means के थ्रू आउट जो कोर्स, जो स्टूडेंट जो है जिसको असेस किया जा रहा है और फैकल्टी जो उसको असेस कर रही है। एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट आर यूजुअली नॉट स्कोर्ड और ग्रेडेड, इनको हम स्कोर और फॉर्मली ग्रेड नहीं करते। एंड दे मेक अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, लाइक आप जो भी क्लास में उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, सेशंस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्विज़ेस के थ्रू, आगे हम उसको फर्दर डिटेल में करेंगे। इन क्लास डिस्कशंस भी आती हैं, कौन सा स्टूडेंट कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है और कौन सा कैसे नहीं कर रहा। एंड समेटिव असेसमेंट ऑन द अदर हैंड आर यूज्ड टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स। अगर आप ये साइड पे बाहर देखें कि समेटिव असेसमेंट में अब वो जो लर्नर है वो अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका हुआ है, अब आपने उसको वहां पे
जाके उसको असेस करना है, लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब उसने ये हिल को अपहिल टास्क जब वो कर रहा था, उस वक्त आपने उसको उस दौरान में असेस नहीं किया, उस दौरान में उसकी क्या नीड्स थी, कैसे वो डेवलप हुआ, किस तरह हुआ। सो फाइनल इज बेसिकली उसका जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत हाई होता है, बहुत ब्रॉड, बहुत वास्ट होता है, एज कम्पेयर टू फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसका स्कोप बहुत ब्रॉड होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट जो है वो शायद उतना वाइडेंड या इतना मतलब स्ट्रॉन्ग ना हो स्टूडेंट के लिए जितना फाइनल असेसमेंट का होता है। सो इट इज एट द कंक्लूजन ऑफ अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल पीरियड, कोर्स और सेमेस्टर प्रोग्राम और अ स्कूल ईयर या कॉलेज का जो भी ईयर है उसका उसके मुताबिक। एंड फाइनली समेटिव असेसमेंट्स आर टिपिकली स्कोर्ड and graded assignments or projects that are used to determine whether students have learned what they were expected to learn, वही validity जिसको हम कहते हैं, during the defined instructional period. Finally, to check over all the performance of the student and can reward the student with the numbers and the grades. To promote or demote the students in other class, फॉर एग्जाम्पल समेटिव असेसमेंट जो है उसमें हमें फाइनली ग्रेड देना होता है और उसका इम्पैक्ट जो होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि स्टूडेंट जो है उससे प्रोमोट या डिमोट हो रहा होता है, जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर डेफिनेटली स्टूडेंट को भी, जैसे हमने बताया, हम उसको फॉर्मली ग्रेड नहीं कर रहे होते हैं और एंड ऑफ द कोर्स है। अगर इसकी हम इसको एनालॉजी इसकी देखें तो एनालॉजी में हमारे पास हम ये कहते हैं कि सूप, व्हेन अ कुक टेस्ट द सूप, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि अगर खुद बनाया और खुद ही हमने किया, दैट इज फॉर्मेटिव। उसके बाद उसको पता चलेगा इसका जायका क्या है, इसको कैसे ठीक करना है, क्या कमी है, क्या जाती है, वो सारी चीजें उसने वहीं पर ठीक करनी है बिफोर पुटिंग इट अप फॉर द गेस्ट्स। और जब फाइनली वो गेस्ट के आगे पुट अप होता है तो वो आपकी फाइनल समेटिव असेसमेंट होती है जिसमें आप पास या फेल होते हैं। तो ये जो आपका खुद एज अ कुक जो आपका टेस्ट होता है या आपके स्टूडेंट का टेस्ट होता है, दैट इज योर फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसी तरह गार्डन के अगर एनालॉजी हम देखें तो उसमें समेटिव असेसमेंट कहा जाता है कि जी फाइनल, अगर आपने एक दरख्त है आपको उसको इवेलुएट करने का कहा गया है, गार्डन एनालॉजी के अंदर यही चीज होती है कि उस दरख्त को अगर आपने इवेलुएट करना है तो आपको बस उस वक्त जो दरख्त जिस भी फॉर्म में नजर आ रहा है आपने उसको उस फॉर्म में देख लिया, यू हैव नेवर नोन कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मतलब उसकी रिक्वायरमेंट्स किस तरह की गई, फीडिंग या वाटरिंग उसकी ओवर द इयर्स कैसे की गई। तो ये जो तमाम प्रोसेस है इन दोनों को हम अगर देखें तो इस तरह से इसको हम इक्वेट करते हैं इन दोनों एग्जांपल्स के साथ। और ये हमारी एजुकेशनल बुक्स के अंदर बड़ी कॉमनली यूज टर्म्स हैं कि अगर आपको पौधे को शुरू से, अगर आपने उसको सीडिंग से लेके उसकी प्लांटेशन टिल उसकी जो आउटपुट जो प्रोडक्ट है वहां तक अगर आपने उसको सींचा है तो दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। डिफरेंस क्या है और टर्मिनोलॉजी क्या है उसमें? असेसमेंट फॉर लर्निंग अगर आप देखें दो तरह से यूज होती है, असेसमेंट फॉर लर्निंग की टर्मिनोलॉजी यूज होती है एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अगर फॉर लर्निंग है इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, एफ एंड एफ। अगर फॉर लर्निंग है तो दैट इज फॉर फॉर्मेटिव, और अगर असेसमेंट ऑफ लर्निंग है तो दैट इज समेटिव। सो फॉर लर्निंग का मतलब है कि हाउ कैन वी यूज असेसमेंट टू हेल्प स्टूडेंट लर्न मोर, कि उसको उसकी लर्निंग के लिए असेस किया जा रहा है ताकि उसकी लर्निंग नीड्स डिफाइन हो। और हाउ एवर असेसमेंट ऑफ लर्निंग, हाउ मच हैव स्टूडेंट्स लर्न एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, यानी ये एंड पॉइंट है, इसमें आप उसको लर्निंग को एनहांस नहीं कर रहे होते बल्कि जितना उसने लर्न किया हुआ होता है उसका एंड पॉइंट होता है, एक एंड आउटपुट प्रोडक्ट होती है जो हम दे रहे होते हैं। अगर हम इसको देखें समेटिव असेसमेंट में, क्योंकि ये हायर स्टेक होती है देन फॉर्मल असेसमेंट, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, तो इसमें बहुत ज्यादा हमें करिकुलर अलाइनमेंट की, फिजिबिलिटी की, जो भी हमने सारी बातें की, गुड एग्जाम होने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं और ये बहुत फॉर्मल होती है समेटिव असेसमेंट। जबकि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग जिसका दूसरा नाम फॉर्मेटिव असेसमेंट है या ऑनगोइंग असेसमेंट है, तीनों इसी के नाम है, ये एक इनफॉर्मल कोर्स से भी चल रही होती है, जबकि इसको हम डिपेंडिंग अपॉन कितना वर्कलोड है, कितना टाइम है सेमेस्टर में हमारे पास, कितने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, कितने ज्यादा इंस्ट्रक्टर हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए हम इसको भी फॉर्मेटिव असेसमेंट को भी फॉर्मलाइज कर सकते हैं। वही चीज दोबारा रिपीट कर रहे हैं बार बार, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड ऑफ लर्निंग है।
अगर यहाँ पे आप देखें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट लो स्टेक एग्जाम में है, समेटिव हाई स्टेक एग्जाम कंसिडर किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट 3F है, फॉर्मेटिव, फॉर लर्निंग एंड फीडबैक। ये 3F जो है, ये 3 पार्ट्स होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट का। तो 3F मॉडल में 3rd F है फीडबैक। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जबकि समेटिव के अंदर देयर इज नो फीडबैक, उसमें बस पास फेल, यस नो, पुअर बैड जो है वो जजमेंट हो रही होती है। एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स द स्टूडेंट रिकॉग्नाइज, यानी उसका स्वॉट एनालिसिस हो रहा होता है और ये प्रोसेस बेस्ड होती है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो उसमें लिखा है कि प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को ऑल्टर कर रही होती है, उसको प्रोग्रेस दे रही होती है और उस पूरे प्रोसेस को या तो एनहांस कर रही होती है या उसको सपोर्ट कर रही होती है। जबकि जो समेटिव असेसमेंट है एज कंपेयर टू फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोडक्ट बेस्ड होती है। जिस तरह अभी हमने वो अपहिल वाला जो हिल जो उसने सर की हुई थी, उसके बाद जो हमने आपको माउंटेनियर का जो दिखाया था, उसमें यही है कि बस प्रोडक्ट क्या है, वो चढ़ गया ऊपर, उसने पहाड़ी सर कर ली, कैसे की, किस तरह की, क्या मीन्स यूज किए, वो उस वक्त जो है हमारा ओवर द ईयर जो उसकी स्ट्रगल्स हैं या एफर्ट्स हैं, वो उस वक्त हमारा समेटिव असेसमेंट में फोकस नहीं हो पा रही होती अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए कहते हैं कि जी कई दफा बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल एंड में आके फेल कर जाते हैं, ओवर द ईयर्स उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ होता है। इसीलिए फॉर्मेटिव और समेटिव के लिए कॉन्सेप्ट है जो पहली लाइन में यहाँ पे आप देखेंगे, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड, दे सेल्डम स्टैंड अलोन इन कंस्ट्रक्शन और इफेक्ट। यानी अब जो नए मॉडल्स आ रहे हैं पिछले ओवर द डेकेड, उसमें फॉर्मेटिव और समेटिव को कंबाइन कर दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि टोटली समेटिव एग्जाम है और फाइनल एंड में आके आप स्टूडेंट को इवेलुएट करके उसको पास या फेल दें। उसकी कुछ फॉर्मेटिव असेसमेंट की भी वेटेज रखें ओवर द इयर्स, जो कि इसके इंटरनल असेसमेंट में काउंट होती है। इंटरनल असेसमेंट को इसीलिए 10% से बढ़ा के बहुत जगह पे 20% कर दिया गया है, बहुत जगह पे 30% कर दिया गया है, फॉर द रीजन कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर जो मैंने अपने स्टूडेंट को इवेलुएट किया, उसकी एंड प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो वेटेज आ जाए। नेक्स्ट अगर हम देखें इफेक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट में, स्टूडेंट शुड बी एबल टू आंसर 3 बेसिक क्वेश्चंस, वेयर एम आई गोइंग, वेयर एम आई नाउ एंड हाउ कैन आई क्लोज द गैप। वही बार बार बात की जा रही है कि स्टूडेंट का स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, ये एनालिसिस आपने स्टूडेंट के साथ सिट टुगेदर करके असेस करना है, तो दैट मेक्स योर फॉर्मेटिव असेसमेंट। टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट्स कैसे हो सकती हैं? क्लासरूम डिस्कशंस हैं, चेकलिस्ट आप बना सकते हैं। चेकलिस्ट का मतलब यही है कि आप तमाम, अगर कोई अच्छे आप टीचर्स, आपके पास कम स्टूडेंट्स होते हैं, कम वर्कलोड होता है, तो एक टिपिकल चेकलिस्ट होती है जिसको आपने डेली स्टूडेंट से फिल करना होता है या स्टूडेंट से फिल करवाना होता है या खुद फिल करना होता है। इन क्लास अगर आप वो चेकलिस्ट डेवलप करें और उसको डे टू डे बेसिस के ऊपर उसकी प्रोग्रेस देखें कि कहीं वो डिटेरियोरेट तो नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, या वो क्या गेन कर पा रहे हैं या नहीं। क्लासरूम डिस्कशन में भी बहुत सारी चीजें हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मीन स्टूडेंट इज नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल। क्वेश्चनियर्स हो सकते हैं, क्विजेस हो सकते हैं। किसी भी वक्त आप क्लास लेने जाएं और क्लास लेने से पहले कहें जी आज हमने ये टॉपिक पढ़ना था, तो उनको एक टेस्ट एडमिनिस्टर कर दिया जाए एमसीक्यू का, उनकी जस्ट बेसलाइन नॉलेज देखने के लिए, बैकग्राउंड नॉलेज देखने के लिए। और उस टेस्ट को जब आप दें तो उसके बाद जब आपने लेक्चर लिया, उनको पढ़ाया, तो फौरन ही टेस्ट के बाद, लेक्चर के बाद आप उनका एक पोस्ट टेस्ट ले लें। सो दिस कैन ऑल्सो बी अ फॉर्म ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। और उसमें देखें कि जो टेस्ट उन्होंने क्लास या लेक्चर शुरू होने से पहले दिया था, उसमें उनकी क्या परफॉर्मेंस थी प्री टेस्ट, और पोस्ट टेस्ट में क्या डिफरेंस आया आपका लेक्चर देने से। या फिर ये किया जा सकता है कि जो अगर आपने पिछले लेक्चर्स ले लिया, तो नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले जस्ट रैंडमली, स्टूडेंट्स को पता हो या ना पता हो, आप उनका एक स्पॉट या सरप्राइज जो है टेस्ट वो प्लान कर लें, और क्वेश्चन या क्विज़ेस की फॉर्म में। टीचर ऑब्जर्वेशंस होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। एज ए टीचर हमसे बेहतरीन कोई नहीं जान सकता कि हमारा स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसने प्रोग्रेस किया है, डिटेरियोरेट किया है। तो डेफिनेटली ये हम लोगों के ऊपर एक इम्पैक्ट है, या हम लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी हेल्प द स्टूडेंट, या वी सपोर्ट द स्टूडेंट इन प्लानिंग हिज एकेडमिक नीड्स। और उसके मुताबिक जो वीकर स्टूडेंट्स हैं उनको हम ज्यादा टाइम दें, या उनके साथ ज्यादा जो है वो डेमोन्स्ट्रेटर्स या ज्यादा इस तरह जो उनके साथ क्लासरूम असाइनमेंट्स उनकी लगाएं, और उनको ज्यादा बेड के ऊपर या क्लिनिकल साइड के ऊपर है तो बेड टाइम दें, या उनकी एक्स्ट्रा आवर्स लगाएं, ताकि उनकी वो डेफिशिएंसीज एट द एंड क्लियर हों और वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ कोप अप कर सकें। 360 डिग्री फीडबैक
जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोग मेरे साथ हैं। रैंडम बस मुझे बताया, कोई हेल्प आउट कर सकता है 360 फीडबैक से? कैसे आप इवेलुएट कर सकते हैं किसी भी कैंडिडेट को? मैम इसमें पीयर रिव्यू भी ले सकते हैं ना, कि क्लास जो जी जी उसके बिल्कुल क्लासमेट्स हैं उनके साथ, उनसे भी हम उसका जो है ना वो फीडबैक लें, 360 ऑल दी एंगल्स, यानी कि हर जगह से उसका फीडबैक मिले। क्योंकि हर जगह बाकी में क्या टीचर क्या हो अगर सकता है? आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट को ना एवेल्युएट करें, बाकी टीचर्स से भी उसका फीडबैक लें, उसके बिल्कुल क्लासमेट्स से भी लें। एग्जैक्टली क्लासमेट से, उसके टीचर से, जो डेमोन्स्ट्रेटर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर वो किसी क्लिनिकल यानी लैब में जा रहा है तो लैब में जो बंदे काम कर रहे हैं उनके साथ भी आप ये देखें, वहीं से आपको आइडिया हो जाता है कि भाई ये बड़ी जबरदस्त ग्रॉसिंग करती है आके ये बच्ची जो है, या ये डायसेक्शन बहुत अच्छी करती है, बड़ी डिटेल में करती है। वो मैडम वो साइड पे बैठा रहता है, आपको जो लैब का टेक्नीशियन है ना वही बड़ा कुछ बता देता है ट्यूटोरियल और उसके दौरान के अंदर। इसी तरह बाकी जो आपके टीचर्स हैं वो भी बड़ा अच्छा आपको गाइड कर देते हैं। क्लिनिकल साइड के ऊपर नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, इवन पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट जिनको वो डील कर रहा है, अगर इंडोर के अंदर पेशेंट्स हैं तो उनके साथ जाके भी एक स्टूडेंट एक टीचर का या एक ट्रेनर का काम है कि वो अगर कोई पेशेंट असाइन हुआ है किसी स्टूडेंट को, तो वो उस पेशेंट से जाके भी फीडबैक ले कि जी डॉक्टर जो उसके साथ डील कर रहा है वो किस तरह, यानी जो स्टूडेंट या रेजिडेंट जो उसके साथ डील कर रहा है उसका उसके साथ कैसा एटीट्यूड या क्या बिहेवियर है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब हमें क्यों करना पड़ा है? ये सब चीजें तो हम अपनी नॉर्मल औलाद के लिए कर रहे होते हैं ना, कि हम जितना उनके लिए कॉन्शियस होते हैं कि जी क्या गोल होता है एट द एंड, कि जी हमारी जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट प्रोडक्ट हो, और उसमें अगर कोई डेफिशिएंसीज हैं वो ओवर द टाइम हम उनको कोप अप करें और वो मीट कर सकें चैलेंजेस को। तो स्टूडेंट्स के साथ भी एग्जैक्टली 360 फीडबैक का मतलब ही यही है कि इतनी आप मॉडरेशन लें कि आप अपना स्कोप ऑफ फीडबैक जो है उसको बढ़ाएं। कॉन्फ्रेंसेस प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं स्टूडेंट्स को वीकेंड में, या फोर्टनाइटली उनको कह सकते हैं कि आप प्रेजेंटेशन बना के लाएं, एक ग्रुप बना ले, उसके ऊपर उनकी ना सिर्फ कॉन्फिडेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी लैंग्वेज स्किल्स और उनकी नॉलेज के अलावा बहुत सारी चीजें आप उसी प्रेजेंटेशंस के अंदर असेस कर पा रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी जरूर दिया करें कि वो हर 15 दिन के बाद कोई ना कोई एक ग्रुप हो जिसमें वो प्रेजेंटेशंस दें, प्रिपेयर करके लाएं और आप खुद बैठ के उनको इवेलुएट करें। जर्नल्स होते हैं, प्रोग्रेस नोट्स होते हैं, लॉग बुक्स इनका दूसरा नाम होता है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होती हैं। हम स्टूडेंट्स को होमवर्क्स में असाइनमेंट्स देते हैं, अगर एलएमएस सिस्टम है उसमें आप उनको असाइनमेंट दे रहे हैं या कोई उनको टास्क दे रहे हैं कल ये करके लाना, या क्वेश्चंस उनको ड्रॉप करते हैं ईमेल पे और उनको कहते हैं कि जी कल आपने इसकी मतलब असाइनमेंट बना के लेके आनी है। सो उनको टास्क दें ताकि उनको पता, बहुत ज्यादा नहीं, ताकि उनको ये पता हो कि जब वो कॉलेज से ऑफ करते हैं तो उसके बाद उनकी स्टिल एक ऑनगोइंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो चल रहा है। और जब आप होम असाइनमेंट्स में होते हैं तो अब तो टीचिंग एंड लर्निंग मेथोडोलॉजीज में ये तक कहा जाता है कि जब होम असाइनमेंट्स हैं तो उसमें आप अपना एक एक कोई ना कोई टीचर या इंस्ट्रक्टर डिप्यूट करें थ्रू सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या कोई भी आपने जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं, कि अगर उन असाइनमेंट्स को कंडक्ट करने में या एग्जीक्यूट करने के दौरान में स्टूडेंट को किसी भी किस्म की सपोर्ट की जरूरत है तो उस वक्त वो वाला डेमोन्स्ट्रेटर जो है वो उनके साथ हो और वो उनको गाइड कर रहा हो थ्रू द कॉन्टैक्ट, चाहे ईमेल के थ्रू, चाहे एलएमएस के थ्रू, चाहे ये व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, बट ही और शी शुड बी देयर टू गाइड द स्टूडेंट्स। एक्टिविटीज दें, जो एक्टिविटीज होती हैं स्टूडेंट्स की, वही जैसे हमने कहा क्लिनिकल साइंटिफिक फील्ड एक्टिविटीज होती हैं, उसमें भी बहुत सारी जगहों पे आप स्टूडेंट्स को असेस कर रहे होते हैं कि वो किस तरह से प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहा है। एक तो उसकी वो स्किल्स होती हैं नॉलेज की, इसके अलावा प्रैक्टिकल स्किल्स में आप एक्टिविटीज देखें। और रिफ्लेक्टिव राइटिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिसमें आप डेली बेसिस पे तो बहुत मुश्किल होता है अंडरग्रेड पे, लेकिन अगर हम उसको ये आदत डालें कि वो हर मतलब मंथ के बाद एक रिफ्लेक्टिव राइटिंग, एक नोट लिखे जिसमें वो अपने पूरे मंथ के एक्सपीरियंस को डिफाइन करे और उसमें अपनी वीकनेसेस को या जो सिस्टम में वीकनेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करे। और अगर हम उस रिफ्लेक्टिव राइटिंग को बहुत जजमेंटल होके नहीं देखें और उससे सिर्फ ये सोचें कि जी ये इस पूरे असेसमेंट सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, तो हम मतलब उसमें कहने का मतलब ये, हम उसमें किसी चीज को पर्सनल ना लें। अगर वो स्टूडेंट कोई डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई कर रहा है तो एज अ टीचर, एज अ इंस्ट्रक्टर हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ताकि वो और उसके तमाम जो साथ के स्टूडेंट्स हैं या नेक्स्ट आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, they may be benefited from reflective writing practices of these students.
फाइनली सर्वेज हैं वो अगर गूगल फॉर्म्स के ऊपर आप अपनी लर्निंग, टीचिंग मेथोडोलॉजीज, प्रोग्राम एवेल्युएशन, कोर्स एवेल्युएशन, लर्निंग एनवायरनमेंट के ऊपर आप फीडबैक लेना चाह रहे हैं स्टूडेंट से, तो आप वो भी ले सकते हैं। या ऑन दी अदर साइड आप स्टूडेंट्स के टीचर से भी स्टूडेंट के सर्वेज ले सकते हैं। ये इदारों ने खुद करना होता है, QEC जो अपने क्वालिटी एनहांसमेंट सेल्स हैं उन्होंने इस तरह के सर्वेज डेवलप किए होते हैं। और अगर आप वो लोग फिल कर रहे हैं नॉर्मल प्रैक्टिस में, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ ईच स्टूडेंट, यहाँ पे उसकी इवैल्यूएशन हो रही है। समेटिव असेसमेंट में अगर हम आए तो समेटिव असेसमेंट में डेफिनेटली एंड ऑफ द ईयर एग्जाम्स हैं, वो जिस तरह भी जो यूनिवर्सिटी ले रही है। अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की बात करूं तो हम LEQs भी ले रहे हैं पुराने पंजाब यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए। शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, SCQs में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हैं। हम इस वक्त EMQs जो है वो नहीं ले रहे अपने रिटर्न के अंदर, लेकिन जो प्रैक्टिकल्स हैं उनमें हमारी OSCE है, OSPI है, बाकी जो लॉग बुक्स वगैरह जिस तरह भी बनती हैं MSMD के अंदर, उसमें वो वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट की जो मोडालिटीज वो यूज करना चाह रहे हैं, मिनी CX है, डॉप्स है, वो सब अडॉप्ट किया हुआ होता है। सो फाइनल असेसमेंट जो होती है वो प्री डिफाइंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, उसी के ऊपर आपको लेनी होती है, और जो आपकी यूनिवर्सिटी या रेगुलेटरी बॉडी कहती है वो उसका पार्ट होते हैं। फाइनल प्रोजेक्ट्स किसी भी क्लास के हो या थीसिस हो या डिसर्टेशन हो, दैट इज आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ समेटिव असेसमेंट, क्योंकि उसकी सारे प्रैक्टिकल वर्क के बाद फाइनल में जो उसका थीसिस इवैल्यूएट होना है, उस पर जो उसके मार्क्स लगने हैं, दैट इज अ समेटिव असेसमेंट। फाइनल रिपोर्ट्स या प्रेजेंटेशंस होती हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट आपने दिया हुआ है कम्युनिटी बेस्ड है और आप ये कहते हैं कि ओवर द ईयर कम्युनिटी मेडिसिन में नॉलेज और प्रैक्टिकल के साथ फाइनल वाइवा वाले दिन जो है अगर उसने कोई प्रेजेंटेशन या ग्रुप प्रेजेंटेशन देनी है, तो वो 4 से 5 स्टूडेंट्स एक प्रेजेंटेशन के अंदर भी इवैल्यूएट हो सकते हैं या फाइनल रिपोर्ट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। बहुत पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जाएं तो डेवलपमेंट ऑफ अ मॉडल, आइडिया या कॉन्सेप्ट पेपर या पब्लिशिंग अ पेपर MSMD के अंदर हम फाइनल असेसमेंट में उसको भी पार्ट ऑफ फाइनल असेसमेंट रखते हैं कि उसका जब थीसिस सबमिट हो रहा है तो उससे पहले उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या उसने वो रिक्वायरमेंट्स अपनी सबमिट कराई हैं या नहीं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर पेपर सबमिशन के भी बाकायदा मार्क्स होते हैं। So that depends totally on different types of universities and the final assessment modalities they are using. और फाइनल ग्रेड्स वही जो आपकी समेटिव असेसमेंट का पार्ट होते हैं, जिसमें आपने स्टूडेंट को ग्रेड करना होता है डिपेंडिंग अपॉन जो भी हमारा इस वक्त ग्रेडिंग सिस्टम जिस भी यूनिवर्सिटी में चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, वेरिएशंस इन समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। हमने इनके टूल्स डिस्कस कर लिए हैं और दोनों का डिफरेंस भी कर लिया है। जो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं विच आई थिंक जो कि की मैसेज होना चाहिए, वो ये कि दोनों जो असेसमेंट्स हैं उनके अपने ड्रॉबैक्स हैं। इनफॉर्मल है एक और एक फॉर्मल असेसमेंट है। एक में आप इमीडिएट फीडबैक दे रहे होते हैं और एक में आप डिलेड फीडबैक दे रहे होते हैं। लेसन प्लान के अंदर एम्बेडेड है या नहीं आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल, ठीक है। और जबकि जो समेटिव असेसमेंट है वो स्टैंड अलोन है, यानी वो स्टैंड अलोन, वो उससे किसी चीज के साथ एम्बेडेड नहीं है, वो आपको टोटली असेस करता है एट द एंड। स्पॉन्टेनियस असेसमेंट है, प्लान है, वर्बल है, नॉन वर्बल है। ये दोनों समेटिव और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हैं, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ लिंक अप कर सकती हैं। सो ये एक वन और द अदर फॉर्म्स ले सकती हैं। सॉरी, ये किसी ने इसको अंडरलाइन किया है? जी, किसी की क्वेरी है मुझे चैट बॉक्स में अगर करना चाहें या डायरेक्टली अगर पूछना चाहें प्लीज। ऑलराइट, मे बी। मैम जी सॉरी, जी एक क्वेश्चन है मैम। जी मैम जी ये फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होते हैं जी इसकी जी। हम आपकी आवाज, फाइनल सॉरी, आपकी आवाज अब थोड़ी मैं लाउडर अगर हो जाए, क्योंकि मैंने माइक अब पूरा। अब आ रही है मैम आवाज? जी जी मैम ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होती हैं, जी क्या जी। हम इसको एज ए फाइनल सर्टिफिकेशन के लिए भी इन्वॉल्व कर सकते हैं? आया क्राइटेरिया डेवलप हुआ है कोई कि नहीं मैम? फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम फाइनल सर्टिफिकेट में ऐड कर सकते जैसे हैं, आप ये कहना जैसे चाह रहे जैसे समेटिव असेसमेंट है, हैं? जी जी। ऑब्वियसली वो सर्टिफिकेशन के लिए होती है मैम। सर्टिफिकेशन या डिग्री या पास या फेल अवार्ड के जी लिए होती है बिल्कुल ना, बिल्कुल। क्या हम प्रमोशन के फॉर्मेटिव लिए। क्या हम फॉर्मेटिव असेसमेंट को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें नहीं मैम? नहीं नहीं नहीं, फॉर्मेटिव बिल्कुल समेटिव का पार्ट नहीं होती। फॉर्मेटिव
में ग्रेडिंग होती ही नहीं है, प्रमोशन होती ही नहीं है। जो थर्ड स्लाइड मैंने लगाई थी उसमें दोनों का डिफरेंस था, वो डिफरेंस यही है, ये सिर्फ फीडबैक देने के लिए है, assessment for learning. It cannot be a part of summative assessment at all. ओके मैम, लेकिन थैंक यू। फॉर्मेटिव असेसमेंट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है इंटरनल असेसमेंट को, और वो इंटरनल असेसमेंट आपकी समेटिव असेसमेंट का पार्ट होती है। ओके मैम, ओके मैम, ठीक है, और उसके कुछ जी ठीक हो गया, ठीक हो गया मैम। वो इंटरनल असेसमेंट जो है वो जो है ना, जो है लीड करता है फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ, ऐसे ही है ना मैम? या फॉर्मेटिव असेसमेंट लीड करती फॉर्मेटिव असेसमेंट लीड करती है इंटरनल है असेसमेंट को, और इंटरनल असेसमेंट जो है वो पार्ट होती है समेटिव असेसमेंट का। ओके मैम, थैंक यू मैम, ठीक है, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, इस लास्टली ये डिफरेंट मेथड्स हैं ऑफ असेसमेंट इन मेडिसिन, इसको आप प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा, या आपने अपने पहले जहाँ पे आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट मोडालिटीज देखी होंगी, ये तमाम आपके फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट्स के कंबाइंड मॉडल्स हैं। आप एमसीक्यू से असेस कर सकते हैं, शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन से नॉलेज कर सकते हैं, ऐसे से भी नॉलेज हो रहा है, डॉप्स और मिनी सीएक्स से स्किल्स और एटीट्यूड आप डेवलप कर पा रहे हैं, ओरल फिर सिमुलेटर्स हैं, पीयर रिव्यू जिसको हमने 360 डिग्री फीडबैक कहा, ये मेनली एटीट्यूड्स को असेस कर रहा होता है। सेल्फ असेसमेंट जो होती है, तो मुझे बताएगा सेल्फ असेसमेंट क्या होती है और ये किस लेवल ऑफ कॉग्निशन को डिफाइन करती है, इसका दूसरा नाम क्या है? सेल्फ असेसमेंट लिखा हुआ भी है, लेकिन सिर्फ ये क्योंकि एक वो चीज है जो शायद आई थिंक हर जो ग्रुप्स में जब मैं प्रेजेंटेशन देती हूँ तो वहां पे लोगों को इसका आइडिया नहीं होता, बाकी सारी चीजें आप सब लोगों ने की भी होती हैं। व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट? कभी आप लोगों ने सुना है ये वर्ड, या पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव तो होता है? जी जी प्लीज। स्टूडेंट की जो अपनी ऑन असेसमेंट होती है, जो यानी कि वो अपने बारे में खुद जो है असेसमेंट कर रहा होता है ना, बार बार जो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट्स उसकी ले रहे होते हैं थ्रू आउट द ईयर, तो जी, जी। उसमें उसको खुद भी आइडिया होता है कि मैं कहाँ पे वीक हूँ, मुझे कहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी है, और इस तरह से। एग्जैक्टली 100% सेल्फ असेसमेंट वही है। इसका जो हम एजुकेशनल टर्मिनोलॉजी में जो नाम है दैट इज कॉल्ड एज मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन का इसका बहुत स्ट्रॉन्ग एक मॉडल डेवलप हो रहा है, वो ये कहते हैं कि जिसको मैंने आपसे कहा, और ये सेल्फ असेसमेंट या मेटाकॉग्निशन किस तरह से हम देख सकते हैं, असेस कर सकते हैं। फॉर्मेटिव टाइप ऑफ असेसमेंट है अगर आप ये देखें, और फॉर्मेटिव के अंदर जो है ये फॉस्टर्स रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग। इट इज फॉस्टरिंग रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग, यानी रिफ्लेक्टिव राइटिंग जब आप उससे करवाएंगे, उसमें वो स्टूडेंट अगर वो ट्रू रिफ्लेक्शन दे रहा है, आपने उसे सही रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस सिखाई हुई है लिखना, तो वो आपको बड़ा अच्छा कम्युनिकेट कर देगा अपनी वीकनेसेस को और अपने एरियाज को। सो that is very much in vogue these days. Ideally, formative assessment strategies, they are meant to improve teaching or learning simultaneously. मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ टीचिंग के लिए होती है, दे आर मेंट टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग simultaneously. Like instructors, they are helping the students not only in growing as learners, but also they are encouraging them as they are also encouraging them for self assessment also. So ये दोनों चीजें हैं कि आपने सिर्फ अपनी टीचिंग को जो है वो उससे मॉडिफाई नहीं करना रिफ्लेक्शन से, बल्कि लर्निंग को भी करना है। एंड फाइनली असेसमेंट जिस भी तरह से हो, फॉर्मेटिव हो, समेटिव हो, उसका एक ग्रिड होता है जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। उसमें हमने इसको कैसे अलाइन करना होता है, वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, वो हम इस नेक्स्ट सेशन में करेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए डेफिनेटली जिस तरह हमने कहा, वो रिकॉर्ड इस तरह से नहीं होती, वो इनफॉर्मल हो रही होती है, उसके बहुत ज्यादा ग्रेड्स या स्कोर जो है इस तरह अलाइन नहीं हो रहे होते। सो दिस इज मेनली फॉर दी समेटिव असेसमेंट। और चैलेंजेस फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, आई थिंक टाइम भी हमारा 2:30 पे क्लोज हो रहा है क्योंकि हमने लेट शुरू किया था। सो challenges for formative assessment is number 1, keep clear criteria for what defines a good performance. सबसे पहले ये instructor should be knowing that what is a good performance. For example, अगर मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या है, मेरे डेमोन्स्ट्रेटर्स, मेरे एपीज, एसोसिएट, सबको पता होना चाहिए कि अगर वो ये स्लाइड डायग्नोज कर लेगा, इस तरह का स्टेन कर लेगा, उसको माइक्रोस्कोप पे बैठना आता है, उसको माइक्रोस्कोप ऑन करनी आती है, उसको स्टेन्स को इंटरप्रेट करना आता है, सो मेरी नजर में ये गुड परफॉर्मेंस है अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज। सो ये आपको इंटरनल अपने लेवल के ऊपर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया डिफाइन करने हैं, ताकि अगर आप एब्सेंट हैं या कुछ
नहीं खुद भी इवेलुएट करे तो आपके तमाम एपीज डेमोन्स्ट्रेटर्स हर बंदा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है वो एक ही यार्ड स्टिक के ऊपर, एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर जो है तमाम स्टूडेंट्स को ग्रेड कर रहा हो। अदरवाइज फॉर्मेटिव असेसमेंट की जो पूरी कोर है, पूरी रूह है, वो खत्म हो जाती है। सो वी कैन से दैट स्ट्रेटेजिक एक प्लान होता है, वो डेवलप करना होता है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने, और दैट स्ट्रेटेजिक प्लान हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम द डे वन। जिस वक्त भी वो एंटर होते हैं उसी वक्त उनको ये कम्युनिकेट कर देना चाहिए ताकि उनको भी पता उन्होंने क्या करना है। इनकरेज स्टूडेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन। फिर वही बात है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप उनको सेल्फ रिफ्लेक्शन, मेटाकोग्निशन या सेल्फ असेसमेंट की तरफ नहीं लेके जाएंगे। बहुत मुश्किल होता है। मेरा स्टूडेंट अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन में ये लिख देगा कि मैडम फला दिन आई थी, मैडम ने क्लास अच्छी नहीं ली, वो प्रिपेयर्ड नहीं थी, मुझे लग रहा था कि उनका फोकस नहीं है, वो बार बार फोन सुन रही थी, मुझे बहुत बुरा लगेगा डेफिनेटली। सो आपने उसको सिखाना है कि रिफ्लेक्शन का मतलब हरगिज पिन पॉइंटिंग, वो एरियाज को पिन पॉइंट करना नहीं है जिससे उसकी मतलब डेफिनेटली उसको एक ग्रूमिंग करनी है, उसको आपने नॉलेज देनी है कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्या होती है। लेकिन साथ ही साथ अपने आप को भी आपने समझाना है कि अपने आप को, अपनी टीम को, अपने जो भी उसको इवेलुएट कर रहे हैं कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग को डाइजेस्ट कैसे करना है, हाउ टू इनगल्फ दैट, उसको पॉजिटिव कैसे लेना है सिस्टम के लिए। तो क्रिटिसिज्म बहुत हमें बुरी लगती है, और बच्चों जिनको रिफ्लेक्टिव राइटिंग नहीं आ रही होती है, कभी कभी इतना बुरा पीस ऑफ पेपर रिफ्लेक्शन का, इवन पीएचडी वाले मेरे स्टूडेंट जो है इतना बुरा रिफ्लेक्टिव पीस लिख रहे होते हैं, लेकिन वो आप बुरा इन सेंस कि वो मुझे बुरा लग रहा होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन डेफिनेटली उसको हमने डाइजेस्ट करके पॉजिटिव लेके उसको आगे हमने प्रोग्रेस करने की तरफ लेके जाना है और स्टूडेंट को मोटिवेट करना है, ना कि एक रिफ्लेक्शन के बाद ये कल्चर बन जाए कि स्टूडेंट दोबारा लिखने की हिम्मत ही ना करे। Give students detailed actionable feedback. Formative assessment की कोर है कि आपने फीडबैक देना है लेकिन डिटेल देना है और एक्शनेबल देना है। Like if you are consistently providing them the feedback and you are trying to help them out to a predefined criteria, तो definitely फिर वही चीज हमें facilitate करेगी आगे। Feedback corrective होना चाहिए, progressive होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, नॉट जस्ट इवैल्यूएटिव। लाइक आप उनको बार बार उनके टेस्ट या उनकी जो क्विज़ेस या जो भी आप उनको ऐसे राइटिंग दे रहे हैं, जो भी आप उनको प्लान्स दे रहे हैं, उसको बार बार लिखने दें। बार बार गलतियां निकल रही हैं, मत उसे डिमोटिवेट करें, मत उसे अंडरमाइन करें कि क्या लिख रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, चौथी दफा हो गई, पांचवी दफा हो गई। डू नॉट डू दैट। जो नॉर्सिनी का मोटिवेशन मॉडल है वो यही दिखाता है कि आप उसको हर दफा उसकी सेल्फ एस्टीम का ख्याल रखें और उसको एक एक्शनेबल फीडबैक दें ताकि वो उसको पता हो कि नेक्स्ट टाइम उसने इस प्रीडिफाइंड क्राइटेरिया में क्या गोल अचीव करना है। एंड फोर्थ इज एनकरेज टीचर एंड पीयर डायलॉग अराउंड लर्निंग। वन वे ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए, हमेशा पीयर डायलॉग और टीचर एंड स्टूडेंट डायलॉग होना चाहिए आपस में, जो कि थोड़ा सा इस वाली ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में लैग करता है डेफिनेटली। इसलिए अभी मुझे ऐसे लग रहा है मैं वन वे चल रही हूँ, तो मैं फॉर्मेटिवली असेस नहीं कर पा रही बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट 1 और 2 को। सो ये बहुत जरूरी होता है, स्पेशली इन स्मॉल ग्रुप। जब आप स्मॉल ग्रुप कर रहे होते हैं वहां बहुत अच्छा एक बन जाता है ट्यूटोरियल्स के अंदर टीचर एंड स्टूडेंट डायलॉग्स होते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेट देम डिस्कस, लेट देम टॉक, लेट देम आस्क यू इवन स्टूपिडेस्ट क्वेश्चंस। इस तरह से अगर आप एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो आपके लर्निंग गोल्स और तमाम जो आगे आपकी जो चीजें हैं वो बहुत पॉजिटिवली प्रोग्रेस करेंगी। प्रोमोट पॉजिटिव मोटिवेशनल बिलीव्स एंड सेल्फ एस्टीम। इस पे मैंने बात कर ली है पहले ही कि किस तरह से आपने स्टूडेंट को रिफ्लेक्शन के थ्रू, फीडबैक के थ्रू और डायलॉग्स के थ्रू एक मोटिवेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है। कभी तंग ना हो स्टूडेंट से, विच इज वेरी अनरियलिस्टिक हो जाता है, लेकिन ये एजुकेशनिस्ट अगर अब आपने कर लिया है ना मेडिकल एजुकेशन का कोर्स या डिप्लोमा, तो अब आप पे बाइंडिंग है कि अब आपने इसको फॉलो करना है। पहले जब तक नहीं पता था तब तक हमारा डिफरेंट कल्चर डेवलप हो रहा था, अब आपने यही एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉस्टर करनी है स्टूडेंट्स में। एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू क्लोज द गैप बिटवीन करंट एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस। अब ये नहीं है कि उसे आपने एक दफा पूरे मैंने बैच को कह दिया जी आपने आज एचएनई ट्रेनिंग की क्लास करनी है, सबने बेहतर कर ली, 5-6 स्टूडेंट्स ने गलत कर दिया, कुछ या ट्रेनिंग में डेफिशिएंसी हो गई, तो मैं उनको कहूंगी भाई आपने गलत कर दिया है, और अब ये वर्बली उनको फीडबैक दे दिया, और उसके बाद जब उनको बच्चों ने कहा जी हम दोबारा परफॉर्म कर लें, तो मैं कहूंगी जी स्टेन ही नहीं है या इतना खर्चा हो जाएगा स्टेन का, बस एक दफा कर दिया, नो अब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है।
So this is not a formative feedback या this is not a formative assessment. आप उनको उस tool से, उस opportunity से उसको मतलब deprive मत करें, उसको दें बार बार कि वो उसको करे until and unless he gets improved in it. So आपको वो उस gap को bridge करने के लिए current और desired performance में उसको वो opportunities देनी चाहिए, उनको create करना चाहिए through your authorities. जी sorry. Okay, collect information which can be used to help shape teaching. And अगर हम finally, I think this is my last slide. Challenges for summative assessment क्या है? सिर्फ ये 3 या 4 challenges हैं. हमारे सबसे छोटे learner भी आ गई है मेरा ख्याल. Okay. All right. Challenges for summative assessment क्या है? आपका rubric, जो भी टेस्ट आपने लेना है उसका टॉस या rubric defined हो. आपके MCQs अगर कंस्ट्रक्ट होने हैं, ऑस्की होनी है, वो स्ट्रक्चर्ड हो. कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हो स्टूडेंट का, अगर जो भी आपने वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, जिस तरह भी आपने इसको चेक करना है वो चेक किया जाए. मेक पैरामीटर्स क्लियर. इतना स्ट्रक्चर्ड आपका वाइवा हो कि अगर 20 एग्जामिनर्स भी ले रहे हैं तो उन्होंने स्ट्रक्चर्ड मार्किंग के थ्रू मार्क्स देने हैं. ऐसे ना हो कि मेरा ये सख्त एग्जामिनर के पास आ गया, मेरा ये लीनियर एग्जामिनर के पास आ गया. Structuring is the biggest challenge of the summative assessment. And finally, consider blind grading. Neutral, यानी समेटिव असेसमेंट को बहुत ज्यादा आपने रिलायबल बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, फ्री ऑफ बायस बनाना है, तो आपको न्यूट्रल एग्जामिनर्स लगाने पड़ेंगे, न्यूट्रल वेन्यूज की तरफ जाना पड़ेगा. और ये कॉन्सेप्ट नॉर्सिनी ने डेवलप किया था 2009 के अंदर कि ब्लाइंड ग्रेडिंग हो, कि वो लोग जो आपके टीचर्स को, आपके वैल्यूएटर्स को बहुत कम जानते हो, या आपके जो इंटरनल, जो आपके असल जो क्लास इंस्ट्रक्टर्स उनको कम जानते हो, वो आपका एग्जाम लेने के लिए अगर आएंगे दूसरे प्रोविंसेस से, तो वो उसके बाद जो आपको असेस करेंगे वो आपकी सबसे बेहतरीन फॉर्म ऑफ असेसमेंट होगी. लेकिन डेफिनेटली ये डिबेटेबल एक कंपोनेंट है, सो वी विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल. और की मैसेजेस बस यही हैं, आप इनको प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि इट्स लाइक 2:35 एंड आई थिंक हमने नेक्स्ट सेशन भी शुरू करना है. इसमें वही बातें हम कर रहे हैं कि हमने एक असेसमेंट को किस तरह वैलिड बनाना है, रिलायबल बनाना है. फॉर्मेटिव असेसमेंट को हमने ज्यादा टाइम देना है, जो कि हम नहीं दे रहे होते, हमारे पास टाइम ही नहीं होता पूरा दिन. एंड फैकल्टी डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ असेसमेंट, ये बहुत जरूरी है. और उसमें ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स, ये तमाम चीजें आपके इदारों का ये जिम्मेदारी है कि वो आपको ट्रेन करें, ना सिर्फ आपकी अपनी एक पर्सनल जिम्मेदारी होना कि जी मैंने अपने आपको प्रोफेशनली रूम करना है, पैसे दे दे के ये कोर्सेज करने हैं. आपके इदारों को भी फैसिलिटेट करना है अगर वो चाहते हैं कि उनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी निकले और उनकी असेसमेंट्स जो हैं वो बहुत पोटेंशियली वैलिड और रिलायबल हों. With this, I would just रिक्वेस्ट आप लोगों से कि कोई आपके क्वेश्चंस हों तो काइंडली प्लीज उसको इस वक्त हम एड्रेस कर सकते हैं. नो क्वेश्चंस? मैम एक क्वेरी ये थी, अभी जो नेक्स्ट सेशन है उसमें आपने असेसमेंट अलाइनमेंट ग्रिड, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जिसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी इसको दिखाया था कि समेटिव असेसमेंट में करिकुलर अलाइनमेंट बहुत जरूरी होती है कि आपने किस तरह से बनाया है. ये जो चैलेंजेस में पहला आप ये देखें यहाँ पे यूज ऑफ अ रूब्रिक और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है, और इसकी जो करिकुलर अलाइनमेंट है वो इस तरह से होती है. तो ये हमने आपको रूब्रिक या ग्रिड जो है ये बताना है, इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है. सो आई वुड रिक्वेस्ट टाइमली आ जाइएगा ताकि हम इसको टाइमली खत्म कर लें. और डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन है. अगर ये कोर्स करके अगर आप लोगों ने फी भी पे की हुई है और आप इस कोर्स में एनरोल्ड भी हैं और आप कुछ पॉजिटिव करना चाह रहे हैं अपने इदारों के लिए, तो एटलीस्ट आपको टॉस या ब्लूप्रिंट को डेवलप करना, आई नो आपको आता होगा, बहुत सारे लोगों को उसको मास्टरी इसके अंदर होनी चाहिए, हाउ टू डेवलप दैट. तो हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड दैट्स इट. सो थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह फिर आपसे 3 बजे मुलाकात होगी. श्योर मैम. इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज. Thank you, ma'am. To begin with our second session, table of specification or blueprint, that is completely related to the first presentation on assessment and the modes of assessment, formative और summative. So जिस तरह पहले बताया था, summative assessment के अंदर टॉस और ब्लूप्रिंटिंग जो है उसका रोल होता है, not related to the formative assessment. Formative को हम structured कर सकते हैं
जिससे मैंने कहा कि हम तमाम, अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे लोगों ने अगर किसी को फॉर्मेटिवली असेस करना है तो उसकी स्ट्रक्चरिंग करने के लिए सब एक जैसा करें, उसको हम स्ट्रक्चर्ड बोल सकते हैं, उसके लिए मैक्सिमम वर्ड। पर जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस या ब्लू प्रिंटिंग है, ये एक कैटेगोरिकल एक टर्मिनोलॉजी है दैट इज यूज्ड फॉर समेटिव असेसमेंट and that is typically and directly related to the validity of the exam. Content validity, context validity, whatever you say, उससे ये directly related होती है, and it has a direct impact on the results, direct impact on the assessment process, direct impact on the evaluation, and to check if the curricular alignment is there, whether the teaching and learning methodologies are aligned with the assessment. So simple words में अगर पूछें आपसे कि लर्निंग आउटकम, चलिए हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसको वन बाय वन देखते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ब्लूप्रिंट और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन? दिस वुड बी आवर फर्स्ट लर्निंग आउटकम. What is the value of a TOS or a blueprint? And what are the methods to design a blueprint or a TOS? So इन तीन major areas को आज हम discuss करेंगे. मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई भी फॉर्मली और इनफॉर्मली डिफाइन करना चाहे ब्लूप्रिंट को, टॉस को, आपका क्या कॉन्सेप्ट है और इस नेक्स्ट सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं, आई वुड बी वेरी थैंकफुल, ताकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो, मुझे भी थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिले कि हम सब साथ हैं. मैम टॉस एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसमें ये डिटेल्स होती हैं कि क्या कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज, मतलब जिसकी तरफ से भी है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब वो किन सिचुएशन से एडहेयर करना है, कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, मतलब कैसे क्या होना चाहिए. जी बिल्कुल ठीक है. टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन ना, कोई भी चीज हमने ऑर्डर करनी है, अगर हमने इवन कोई ड्रेस भी लेना है तो हम स्मॉल, मीडियम, लार्ज, उसका शू का साइज देखते हैं, 40 उसके स्पेक्स देखना चाहते हैं. तो एक स्पेक्स का वर्ड किसी भी परचेज या किसी भी प्रोडक्ट के लिए हम यूज करते हैं. यहाँ भी स्पेसिफिकेशंस का मतलब वही है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे कंप्यूटर सिस्टम लेना है, फोन लेना है, मेरी आई एम नॉट दैट टेक्निकली साउंड, लेकिन उसकी जितनी जितनी आप IT लिटरेट होते जाएंगे, आपको उसकी इतनी ज्यादा इन डेप्थ स्पेसिफिकेशंस का आइडिया होता जाएगा. इसी तरह असेसमेंट के अंदर वो टेबल जो कि आपकी असेसमेंट की स्पेसिफिकेशंस का एक डॉक्यूमेंट होता है, जो कि वेरी राइट, जो आपका इदारा, रेगुलेटरी बॉडी, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या चाहे वो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल हो, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल हो, जिस तरह उसने एवेलुएट करना है, या फार्मेसी काउंसिल, जो भी हो, वो अगर आपके लिए एक बना देता है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एज अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम, तो उसको फिर फॉलो करने से स्टैंडर्डाइजेशन अचीव होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेडिकल डॉक्टर्स तमाम पाकिस्तान के एम करना है, या नर्सेज या डेंटल ग्रेजुएट्स एक जैसे बनाने हैं, तो फिर PMDC को तमाम यूनिवर्सिटीज को एक ही तरह के करिकुलम में एक ही तरह का टॉस देना चाहिए, ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही पैरामीटर, एक ही यार्डस्टिक से असेस हों. उसके बाद जो डॉक्टर्स बनेंगे, देयर वुड बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द डॉक्टर्स या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द असेसमेंट प्रोसेस थ्रू आउट द कंट्री. बट दिस इज टोटली अ फेरी टेल. इट सीम्स लाइक टू बी मतलब एक बिल्कुल एक अनअचीवेबल सा टास्क लगता है. सो इस वक्त मी इन एट UHS, और अगर नम्स है और जैम्बू है, उनके साथ जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनके लिए हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि उनको एक बुक दे दी जाती है जिसमें टॉस लिखा हुआ होता है, और उस टॉस के मुताबिक आपने फर्दर जो है अपनी तमाम असेसमेंट को अलाइन करना होता है. सो व्हाट एक्चुअली इज अ टॉस और अ ब्लूप्रिंट? A table of specification is a two-way chart that identifies the format and content of the assessment. फॉर्मेट क्या होगा, कंटेंट क्या होना चाहिए, क्या क्या असेस होना है, यूजिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो आपके कोर्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अलाइन किया जाएगा, एंड द इंस्ट्रक्शनल कंटेंट एज अ गाइड. सो दिस वाज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, जो कि मुझे 10 टीचर्स की जो बुक है उसके अंदर से ये मैंने उसको 10 टीचर्स, ये आई थिंक अगर उसको हम माइक, अगर किसी का ये माइक प्लीज ऑन है तो उसको प्लीज अगर आप बंद कर दें, बहुत शुक्रिया.
so that disturbance ना हो उसमें क्लास में. I'd be very thankful. So ये वहां से मैंने उसकी जो है ली है डेफिनेशन. मेडिकल टीचर्स का जर्नल है जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी का सबसे मशहूर ब्लू प्रिंटिंग या टॉस मॉडल है, उनकी डेफिनेशन ये पिकअप की है. अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज अ two-way chart that identifies the format, content of the assessment using the learning objectives and the instructional content. तो सब कुछ आ गया, फॉर्मेट भी आ गया, कंटेंट भी आ गया, आपके एलओस क्या थे और इंस्ट्रक्शनल कंटेंट क्या था, आपने किस तरह से पढ़ाया, क्या आपकी मेथोडोलॉजी थी. There are many ways to build a table of specification and many different variants of these tables. Please remember, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट फॉर्मेट होगा, हर यूनिवर्सिटी डिफरेंट तरह से टॉस दे रही होगी, लोकली, नेशनली, इंटरनेशनली. सो ये कोई एक स्टैंडर्ड इसकी गाइडलाइंस डेवलप नहीं हुई सवाए चंद एक दो तीन पैरामीटर्स है जो आगे हम डिस्कस करेंगे. अदरवाइज एवरी यूनिवर्सिटी इज authorized or has an autonomous responsibility to make its own TOS, but ensuring that those TOS are being practiced at all its affiliated colleges where the students are being examined so that the university's results, they are standardized. That is the only responsibility that the university should own. चाहे वो जो मर्जी उसका फॉर्मेट रखें, चाहे वो उसका जहां मर्जी से उसको अडॉप्ट करें, लेकिन 2 से 3 उसकी बेसिक कोर्स हैं जो कि उसका पार्ट होनी चाहिए. Table of specification is also called the test blueprint, provides a listing of the major content areas, cognitive levels intended to be included on each test form. So who uses it? It was introduced in the early 19th century through the publication, through the books in general education के अंदर, social sciences में शुरू हुआ था, वहां से हमारी मेटलर्जी, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, और वहां से होता 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 फाइनली एजुकेशन साइंस, मेडिकल एजुकेशन के अंदर बहुत लेट इसका जो है वो इस्तेमाल शुरू हुआ 1900s या 20th century अगर हम कहें उसके अंदर. It was firstly used by construction engineers by the name of a blueprint. कार डिजाइनर्स ने भी जो वर्ड यूज करते हैं जिसको हम नक्शा कहते हैं, मैप कहते हैं, स्पेक्स कहते हैं, उन्होंने भी इसका नाम ब्लूप्रिंट रखा हुआ है और इसको ब्लूप्रिंट के तौर पे ही यूज करते थे शुरू में. फाइनली एजुकेटर्स ने इसको अपने करिकुलम का पार्ट बनाया. सो इस इमेज से क्या डिपिक्ट होता है? एनीबडी? आई विश मेजर राहीला के अलावा प्लीज कोई बोल दे. और मैं बताती हूँ, ये मैपिंग है एक बिल्डिंग की या एक नक्शा, या इसे हम क्या कहेंगे, मॉडल कहेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्टली. और ये डिपिक्ट क्या कर रहा है? ये कि अभी जो आगे बनना है वो इसके ऊपर बिल्ड करेगा. ओके, या हम ये कह सकते हैं कि ये वाला, इसे बैक फोर्थ जाए तो ये मॉडल बन चुका हुआ है. ये वाला जो है, ठीक है. और जब ये बना था तो जो उनका प्रिसाइज डिटेल्स थी स्ट्रक्चरिंग की, यानी कितने इंच पे क्या होगा, कौन सी किधर कॉरिडोर बनना है, रूम कितने साइज का होगा, उसमें कितनी खिड़कियां होंगी, कहाँ कहाँ होंगी, और क्या अलाइनमेंट्स होंगी, कितना रोडवे छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा, ये तमाम एरियाज जो हैं, ये तमाम जो प्रिसाइज सी डिटेल्स है टिल द एंड, जो आपको फाइनल आउटपुट जिसके लिए चाहिए. सो that is blueprint of the architects. और इसी तरह अगर हम कार डिजाइनर्स पे जाएं, यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि एक एक माइक्रो डिटेल्स उसके अंदर जो आ रही है, मेजरमेंट्स की, शेप की, साइज की, कितनी लेंथ, कितनी अलाइनमेंट, कितना उसकी विड्थ, क्या मटेरियल तक होना चाहिए, ये जो इंजीनियरिंग, जो कार इंजीनियरिंग के अंदर या ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के अंदर जो आ रहे होते हैं, ये उनकी ब्लूप्रिंट होता है. इसी तरह हमारा जो ब्लूप्रिंट है, जो एजुकेटर्स हैं हम लोग, हमारा भी ब्लूप्रिंट इतना ही प्रिसाइज होना चाहिए आइडियली, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं होता, जिसकी वजह से तमाम हमारी असेसमेंट के अंदर ये प्रॉब्लम्स आती हैं. सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एड्रेस करने हैं इस पॉइंट पे, जो हमें पता होना चाहिए कि why we specifically need a TOS और a blueprint. What is the purpose? ठीक है, ना बनाएं, क्या होगा अगर उसका नहीं बनाएंगे, नुकसान क्या होगा? Who will benefit from? जी सॉरी. इम्प्रूवमेंट का पता नहीं चलेगा ना कि हमें कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हमारा कौन सा होना चाहिए, मॉनिटरिंग नहीं होगी. बिल्कुल. अच्छा, मुझे सिर्फ अगर ये इसका बता दीजिए, why we specifically need a TOS? क्यों चाहिए होता है? May I? जी श्योर,
थैंक यू। मैम इसमें ये है कि हमें एक ट्रैक मिलता है जिसके थ्रू हम लोग एक जो है ना टेन्योर से गुजरते हैं एक रिजल्ट अचीव करने के लिए। एग्जैक्टली ट्रैक हमें मिलता ये है। जी जी सॉरी। हमें ये डिसाइड करना होता है कि इतने टाइम पीरियड में हमने ये सब चीजें कवर करनी है। मैम बिल्कुल ठीक है, हमने इतने पीरियड में इससे सब हमें ये चीजें, मिलता है ये आर्किटेक्ट में। जी ये कंटेंट हो गया, ये सब कंटेंट कवर करना है, इतने पीरियड में करना है। और उसकी इंस्ट्रक्शन, अगर आप उसकी डेफिनेशन में जाएं तो जहां हमने ये डिस्कस किया था उसकी इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए, अगर आप ये रेड में देख रहे हैं, और एलओस क्या हैं आपके, और फॉर्मेट क्या होना चाहिए असेसमेंट का, एमसीक्यू, एससीक्यू, किस कंटेंट को कैसे असेस करना है, किसके लिए हमें सिर्फ प्रैक्टिकल ऑस्की चाहिए, किसके लिए एमसीक्यू चाहिए, किसके लिए लॉन्ग एसे चाहिए, और उसका इंस्ट्रक्शनल डिजाइन क्या होगा। अगर वो प्रैक्टिकल है तो उसको फिर लैब में ही पढ़ाना है, उसको सिर्फ फिर क्लिनिकल बेड साइड पे ही पढ़ाना है। अगर वो नॉलेज को या आपके एटीट्यूड्स को देख रहा है तो डेफिनेटली उसको फिर आप क्लासरूम बेस्ड करके या रोल मॉडलिंग करके प्लेस करके आप उसको करा सकते हैं। सो ये तमाम इन आपके जो सब बातें आपने की, चारों जो हमें जो व्यूज आए, आई एम सो थैंकफुल, उन सब का एक कंबाइंड जो है वो पर्पस होता है ब्लूप्रिंट का, कि इसने इन तमाम चीजों को अलाइन करना होता है। बेनिफिट कौन करता है, अगर आपका टॉस अच्छा बन जाए, इसका पर्पस या आउटकम क्या होता है, एक ही आउटकम होता है, स्टैंडर्डाइजेशन। ताकि फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने कॉलेजेस की बात करूं कि या पंजाब यूनिवर्सिटीज की बात करूं, जो किंग एडवर्ड का जो ग्रेजुएट है वो अगर निकल रहा है, तो जो यूएचएस का ग्रेजुएट निकल रहा है, जो एफजे का ग्रेजुएट निकल रहा है, वो सब एक स्टैंडर्डाइज एक यार्ड स्टिक में से होके निकले हैं। पाकिस्तान में अगर आपको फॉर एग्जांपल इतना अच्छा सिस्टम तो नहीं, ना ही एग्जांपल अच्छी है, अगर आपको ड्राइविंग टेस्ट करना है तो आपने एक ही जगह जाके एक ही मेथड से आपने ड्राइविंग टेस्ट करके पास होना है। या चलिए बहुत ज्यादा अगर हम इसको स्ट्रिंजेंट करें, अगर आपको यूके का वीजा चाहिए तो एवरीबॉडी हैज टू पास थ्रू अ सेट ऑफ चेकलिस्ट, एक ही स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, उससे सबने पास होके फिर उन्होंने अचीव करना है अपना आउटकम। सो यही एक पर्पस होता है, वन आंसर, वन वर्ड आंसर, कि बाय वी नीड इट फॉर द स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट। एंड हु विल बेनिफिट फ्रॉम इट, डेफिनेटली सबसे पहले स्टूडेंट्स, कि वो ये नहीं कहेंगे कि जी मुल्तान मेडिकल कॉलेज का आसान पर्चे बनते हैं सेंड अप के, वो सारे पास हो जाते हैं इसलिए फाइनल प्रॉफ में एलिजिबल हो जाते हैं, जबकि सिम्स के मुश्किल बन रहे हैं, उसके ऐसे बन रहे हैं, उसके ऐसे बन रहे हैं। जी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ओके, सो सेकंड बेनिफिशियरीज कौन है, हम लोग एज ए टीचर्स, एजुकेटर्स, फिर वही जो हमने बात की, हमारी पूरा कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज के ऊपर हमारी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के ऊपर हमारी काउंसिल, काउंसिल के ऊपर हमारी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के ऊपर हमारा पूरी कंट्री, कि उनका आउटपुट प्रोडक्ट क्या बन रहा है। सो एक स्टैंडर्डाइज जो एक असेसमेंट होती है उसका जो आउटपुट होता है, सबसे पहले आप देखेंगे इस वक्त जितनी भी हमारे पास मतलब अगर मैं रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी में रही तो मेरे पास जितनी भी एप्लीकेशंस आई, आप सब लोगों ने भी देखा होगा अपने उसमें टेन्योर के अंदर, कि जब भी फॉरेन इक्विवेलेंस के लिए कोई हमारे स्टूडेंट्स नर्सिंग के या मेडिकल कॉलेजेस के अप्लाई करते हैं, तो अब वो करिकुलम की कॉपी मांगते हैं साथ अटेस्टेड, वो मैंडेटरी कंपोनेंट है उसका, उसके बगैर वो आपको इक्विवेलेंस नहीं देने को तैयार होते, और वो रजिस्ट्रार उसको जो है वो स्टैंप करता है। और हर करिकुलम के अंदर टॉस इज द मैंडेटरी कंपोनेंट, वो उसके अंदर ये मांगते हैं कि जी आपने जिस क्राइटेरिया के तहत इन ग्रेजुएट्स को सॉरी हाँ जी, आपने ये इन ग्रेजुएट्स को जो प्रोड्यूस किया है, इनको किस टॉस पे आपने असेस किया है। सो इंटरनेशनल एजेंसीज नाउ दे डू आस्क फॉर द टॉस, क्योंकि उनको जानना है कि किस डॉक्यूमेंट के थ्रू आपने ये नर्सेज, ये डॉक्टर्स, ये डेंटल ग्रेजुएट्स बनाए हैं। तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस इस वक्त हो चुकी है किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड फाइनली व्हाट विल बी द एक्सटेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, इसकी डिटेल्स क्या होंगी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा इसके बहुत से वर्जन्स हैं, शॉर्टेस्ट भी बेहतर होता है बनाना, एक मीडियम सा भी बेहतर होता है, बहुत एक्सटेंसिव रॉयल कॉलेज वालों के अगर आप डॉक्यूमेंट्स खोलेंगे, आप इंटरनेशनल बाकी उनके अमेरिकन जो कॉलेज ऑफ पैथोलॉजिस्ट के खोलेंगे, बहुत एक्सटेंसिव, बहुत स्ट्रिंजेंट है। जिस जिस तरह आपकी डिग्री का इम्पैक्ट या उसका जो है स्कोप ब्रॉड होता जाता है, उसी तरह आपकी जो टॉस और ये तमाम चीजें जो है वो आप उसको उतना वाइडेंड कर सकते हैं। सो ओके, but will it be formal?
और इनफॉर्मल, ये टाइपिंग एरर हो गया, इट वुड डेफिनेटली बी फॉर्मल, इसमें कोई दूसरा सवाल ही नहीं है। बहुत सारी हम वर्कशॉप में जब जाते होते थे शुरू में, तो वहां कहा जाता था कि जी टॉस रखा हुआ है लेकिन इसको हम इनफॉर्मली अप्लाई करते हैं। सो टॉस और इनफॉर्मल होना दोनों बिल्कुल ये जो है आग और पानी वाली चीज है। सो नेवर से दैट कि टॉस जो है वो कोई इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट, इट हैज टू बी वेरी वेरी फॉर्मल एंड अ वेरी वेरी लीगल डॉक्यूमेंट, जिसकी बेसिस पे स्टूडेंट क्लेम्स कर सकता है कि पेपर आउट ऑफ कोर्स है, पेपर इन कोर्स है, पेपर मुश्किल है, डिफिकल्ट है, उसको रीवैल्यूएट किया जाए। सो इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीगल वैल्यू। हु विल डिजाइन इट? डेफिनेटली टॉस जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। सबसे पहले मुझे पता है मैंने पैथोलॉजी के अंदर क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, बीइंग अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। अब मेरी पीछे से एजुकेशन क्या है, मेरी ट्रेनिंग क्या है, मैं कितनी अच्छी पैथोलॉजी पढ़ के आई हूँ, ये एक अलग क्वेश्चन है। इसीलिए आपकी जो हायरिंग्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, वो अगर बेस्ट पर्सन, बेस्ट फिट फॉर द पर्पस होगा तो फिर ये चीजें आगे चलेंगी। अगर मुझे सब्जेक्ट का ही नहीं पता, मुझे उसकी सीरियसनेस, उसकी अलाइनमेंट्स का खुद नहीं पता, तो मैंने आगे फिर टॉस भी वैसे ही बनाना है। सो डेफिनेटली सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का यहाँ मतलब वो है जो कि एक अच्छा क्वालिफाइड अप्रोप्रिएट मेजर्स के साथ जो काम करने वाला या अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस के साथ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, वो हमारा मतलब है। एंड अपार्ट फ्रॉम हिम मेडिकल एजुकेशनिस्ट जरूर उसका पार्ट होनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं प्रैक्टिस। एंड एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, डिप्टी कंट्रोलर जो पेपर सेटिंग वगैरह करवाते हैं, ये 3 लोग मेन डोमेन है और इन्हीं तीनों के साथ ही टॉस बनना होता है। क्योंकि मैं अगर एज पैथोलॉजिस्ट, या क्योंकि मैं पैथोलॉजी की बात इसलिए कर रही हूँ, मेरा सब्जेक्ट है, मैं अगर कोई एक लंबा चौड़ा सा एक बड़ा स्ट्रिंजेंट सा मॉडल दे दूंगी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को कि एंड में असेस करो, वो कहेंगे कि इतने तो स्टेशन हम लगा ही नहीं सकते, हमारे पास 6,000 स्टूडेंट ने असेस होना है, ये तो फीजिबल ही नहीं होगा एट दी एंड। तो फिर वो तमाम का तमाम मॉडल जो है वो मेरा बेकार जाएगा। सो फाइनली जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि क्या वो जितने एमसीक्यूज आपने कहे हैं, जितने एससीक्यूज आपने कहे हैं, जितने ऑस्पिस्टेशन जिसका कि आपने कहे हैं, क्या वो करवा भी सकता है कंडक्ट में, एग्जीक्यूट। So that is very important. And what resources are available for its design and implementation? यही मैंने आपसे बात की कि उसको डिजाइन करने के लिए और फिर फर्दर इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको रिसोर्सेज भी देखने हैं। बहुत ज्यादा ओवर एंथुजियास्टिक हमें मॉडल्स नहीं बनाने चाहिए। टू स्टार्ट ऑफ विद वो डिग्रीज जिनका हाईएस्ट इम्पैक्ट है, जैसे मेडिकल, नर्सिंग और डेंटल्स हैं, इनके अंदर हम जो है ज्यादा स्ट्रिंजेंट बना सकते हैं। अलाइड हेल्थ साइंसेज के साथ जो बाकी फार्मेसी या जो इस तरह के डिसिप्लिन हैं, उनको हम थोड़ा अभी इस वक्त उनका मतलब मीडियम इम्पैक्ट का भी टॉस जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर चला रहे हैं इस वक्त। सो गाइड्स है फॉर अ डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, हमने डिफाइन कर लिए, ये मैंने यहाँ पे आपको ये सारे स्टेक होल्डर्स बता दिए हैं जो हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। इन सब के लिए ये डॉक्यूमेंट जो है बन रहा होता है। ये असेसमेंट टाइप्स है। ये पिक्चर टिपिकली वही डिपिक्ट करती है जो सुबह डॉक्टर साहब ने बताया था थोड़ी देर पहले कि वैलिडिटी क्या होती है, कि इट द टेस्ट इज टेस्टिंग बट इट हैज टू टेस्ट, यानी उसने वही चीज टेस्ट करनी है, अपना वही टारगेट अचीव करना है जिसके लिए वो बना हुआ है। जो उसने स्किल चेक करनी है तो वो टेस्ट वैसा बनना चाहिए कि उसने स्किल ही चेक करनी है। आप ऑस्पी स्टेशन के ऊपर सिंपल थ्योरी का सवाल अगर लिख देंगे तो वो एक स्ट्रक्चर्ड फ्लॉ है। इसी तरह अगर आप कोई प्रैक्टिकल स्किल का सवाल उसको थ्योरी के अंदर दे देंगे, डेफिनेटली वो भी टारगेट मीट नहीं हो रहा। सो इट हैज टू बी aligned to the target। ये पिक्चर सिर्फ इसलिए शो यहाँ पे कर रही है कि जो आपकी असेसमेंट है that has to be aligned with the aligned with your targeted outcome of that course. Learning objectives, learning experience and assessment, these all have to be aligned by all means। क्योंकि ये हम शुरू में भी जो आपको पहली जो इसकी डेफिनेशन दिखाई थी उसके अंदर भी यही बात पॉइंट हो रही थी कि जब तक आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, आपके लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी जिस तरह से आप उसको पढ़ा रहे हैं, आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज का हमारा क्या है कि हमने इसकी डिजाइनिंग सीखनी है, ये होता क्या है, और जिस तरह से हम इसको, मैं इसको पढ़ा रही हूँ, एग्जीक्यूट कर रही हूँ, जो आगे मैं स्लाइड्स यूज करूंगी, वो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस मिलके एंड में जब आपको असेस किया जाएगा इस कोर्स के लिए, वहां जो रिफ्लेक्शन इसका होगा, वहां जाके पता चलेगा कि मैं कितने पानी में थी और आप लोगों ने कितना सुना, कितना नहीं सुना। सो इट इज अ शॉर्टेस्ट एग्जाम्पल। इसको अगर ब्रॉडर इम्पैक्ट में देखें तो ये तीनों चीजें अलाइंड हैं आप इसमें, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं ये आपकी असेसमेंट जो है दैट इज टोटली ड्रिवन बाय द लर्निंग एक्सपीरियंस एंड योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स।
अब शुरू में बात हुई थी करिकुलर अलाइनमेंट की, किसी पार्टिसिपेंट ने ही बड़ा अच्छा ये बात एक की थी कि असेसमेंट जब तक करिकुलम से अलाइन नहीं होगी तो असेसमेंट का पर्पस जो है वो सॉल्व नहीं होगा। वेरी वेल सेड, वेरी वेल राइट। इससे दूसरी कोई बेहतरीन बात हो नहीं सकती, क्योंकि करिकुलर अलाइनमेंट या एजुकेशनल अलाइनमेंट जिसको हम बोलते हैं, ये जिसका ये कोर है असेसमेंट की। इस मॉडल को अगर आप देखें तो ये डिफरेंट डोमेन्स हैं, ये तमाम जो है एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, और एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा इनका जो है वो टाइम, यानी इनकी आपस में अगर आप बॉन्डिंग चेक करें तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है इस मॉडल की। सो इन दैट यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये एजुकेशनल अलाइनमेंट का मॉडल जो है इंटरनेशनली अडॉप्टेड है। ये मैंने खुद नहीं बनाया, ना ही यूएचएस ने बनाया, ना ही किसी ने बनाया, ये हमने बुक से रेफर किया हुआ है, नॉर्सिनीज बुक से। वहीं पे इसको जब उन्होंने इसको अलाइनमेंट बताई तो इसको डिफरेंट कलर कोडिंग में दिया। ये करिकुलम का है जो ग्रीन सर्कल हमें शो हो रहा है, ब्लू जो है ये आपकी टीचिंग है कि आपने किस तरह से टीच किया, क्या मेथोडोलॉजी यूज की। असेसमेंट इज दिस पिंक ट्रायंगल एंड लर्निंग इज दिस येलो ट्रायंगल। सो सबसे ज्यादा आप इंपॉर्टेंट चीज देखें, जो सबसे ज्यादा जो एरिया कवर कर रही है वो है आपका करिकुलम। आपका करिकुलम जो जितना वो चीजें कवर करना चाह रहा है, उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा बॉक्स है अगर आप वो देखें तो ये ब्लू बॉक्स है, ये सारा जो अंदर जा रहा है। उस करिकुलम के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं, उन चीजों को आपने पढ़ाया कैसे, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और फिर आपने पिंक ये वाली चीज, ये जो ये असेसमेंट है, आपने उसको असेस किस तरह से किया, क्या वो वैलिड था, जिस चीज से, जिस टूल से, जिस कंपोनेंट को असेस करना चाहिए था, क्या उसको किया गया। और फाइनली लर्निंग। लर्निंग सबसे छोटी, आप देखिए सबसे छोटा ट्रायंगल है, लेकिन उसमें सबका पार्ट आ रहा है। असेसमेंट जब आप कर लेते हैं उसके बाद आपको पता चलता है कि आपकी लर्निंग हुई है या नहीं। असेसमेंट ड्राइव भी करती है लर्निंग को, और असेसमेंट एक चेक भी होता है लर्निंग का। और जब आपको आइडिया हो जाता है असेसमेंट के बाद कि आपकी लर्निंग मोडालिटी अगर परफेक्ट थी, ठीक थी, तो वेल एंड गुड, यू कैन गो अबव एंड बियॉन्ड दैट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी लर्निंग और टीचिंग में फ्लॉज थे जिसकी वजह से आपकी असेसमेंट जो है वो नहीं सही रिजल्ट्स दे सकी, सो फिर आपके पास एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट होते हैं। ये तमाम चीजें जो है ये एजुकेशनल अलाइनमेंट को कंसिडर उसमें इनको कंसिडर किया जाता है। पाकिस्तान में सिर्फ 90% जो कंटेंट चल रहा है वो इस मॉडल जो मैंने आपको दिखाया इस मॉडल पे चल रहा है। इसमें तमाम चीजें हर एक के अंदर थोड़ा थोड़ा अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, लेकिन हर चीज अलग अलग पड़ी हुई है। जबकि एक आइडियल जो असाइनमेंट या ब्लूप्रिंट या टॉस के साथ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि ये तमाम चीजें एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट या थोड़ा थोड़ा पोर्शन नहीं दें, बल्कि 100% जो है वो उसके साथ अलाइन हो एक दूसरे के साथ। ये अलाइनमेंट जो होती है ये हमें टॉस से अचीव होती है। इसको हमने और पर्पस भी यही होता है करिकुलर अलाइनमेंट का कि आपकी इंस्ट्रक्शन, टीचिंग, करिकुलम, लर्निंग, असेसमेंट सब एक दूसरे के साथ अलाइन है। सो पर्पस ऑफ ब्लूप्रिंट इज अलाइनमेंट ओनली। पर्पस ऑफ असेसमेंट सुबह हमने कर लिया था। सिंपल असेसमेंट के क्या पर्पस होते हैं उसको मैं दोबारा डिटेल में नहीं जाऊंगी। फीडबैक, डायग्नोज, प्रमोशन और वटेवर जो भी आपने उसमें किया है, मिरर्स पिरामिड है, उसके लिहाज से जो भी आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं। और करिकुलर अलाइनमेंट जो है उसका मॉडल यही है। ये एक ट्रायंगल होता है करिकुलर अलाइनमेंट का, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। किसी भी जगह अगर आप प्रेजेंट करें, बात करें एज ए मेडिकल एजुकेशनिस्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि करिकुलम अलाइनमेंट जो है दैट इज टोटली अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ट्रायंगल विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, जिनको हम एलओस बोलते हैं या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स और असेसमेंट। इन तीनों को जब कंबाइन किया जाता है तो दैट मेक्स योर करिकुलर अलाइनमेंट। बेनिफिट्स ऑफ ब्लूप्रिंट क्या है, ये जो मैंने आपको टीचर मेडिकल टीचर्स का जो एक आगे मैं आपसे शेयर करूंगी, वहां से कैलगरी का जो मॉडल है वो उसमें ही कहते हैं कि बेनिफिट्स ब्लूप्रिंट के स्पेसिफिकली बेनिफिट्स क्या हैं। इट इंश्योर दैट क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन दिस एग्जामिनेशन आर अलाइन्ड टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. It ensures that there are no questions that are out of syllabus. Make assessment fair to the students. They know how much and to what extent and by what mode they are going to be assessed.
डिजाइन द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, नंबर 4 पे आप उसके मुताबिक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी डिफाइन करते हैं, प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिकल लैब्स में, क्लिनिकल के लिए क्लिनिकल, और नॉलेज के लिए पावर पॉइंट वटेवर फील्ड विजिट्स कराने हैं, उनको वीडियोस दिखाने हैं, एनिमेट जो भी आपने करना है उसके लिहाज से अपनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को अलाइन करें। Ensure that the selected test items provide appropriate emphasis on thinking skill यानी reasoning skill and assessment of in-depth knowledge, यानी आपका आउटपुट क्या है, आपने कैसी नर्स, कैसा डॉक्टर, कैसा डेंटिस्ट बनाना है जिसके पास क्रिटिकल या रीजनिंग स्किल्स हो और उसके साथ उसके पास इन डेप्थ नॉलेज हो। Sample content, competencies and tools for assessment in a rational and balanced manner, वो जो हमने अभी आपको merged triangle circle सारा दिखाया था, एक रैशनल और बैलेंस्ड मैनर में ये तमाम चीजें एक दूसरे के साथ अलाइन होनी चाहिए। ये ब्लूप्रिंट का एक बेनिफिट्स हैं फॉर द स्टेक होल्डर्स। ये ब्लूप्रिंट का एक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कि किसी भी चीज को अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी एक कोट है ऊपर, कोट जिसको हम कवर कहते हैं, ये वाली जो बाहर कोट है, और ये इसकी कोर है। ठीक है, कोर जो है वो मस्ट है, वो होनी बहुत जरूरी है, और जो कोर उसकी जो कोट है ऊपर, जो उसकी सरफेस है या जो उसका कैप्सूल कह लें, वो ऑप्शनल होता है, उसको आपने रखना है या नहीं रखना। ये ब्लूप्रिंट का मॉडल की डेवलपमेंट के अंदर ये मॉडल इंपॉर्टेंट होता है। और किस तरह से इसको एग्जांपल दी जाती है, इसको अनियन के साथ, प्याज के साथ एग्जांपल दी जाती है कि दी कोट इज ऑप्शनल व्हाइल दी कोर जो है उसके अंदर दैट इज मैंडेटरी। किस तरह से कि अगर हमने अनियन को स्लाइस किया, स्लाइसिंग के बाद अंदर से ये शक्ल हमें नजर आती है, 1 रिंग, 2 रिंग, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी ये एक जो पूरा रिंग है अनियन का, ये आपका लेक्चर 1 है, ये वाला, ये लेक्चर 2 है और ये लेक्चर 3 है। अब लेक्चर 1, 2, 3, 4 को फर्दर अगर आपने आगे से डिवाइड किया तो उस ये हर रिंग का जो पोर्शन है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ऑनवर्ड्स, ये एक पूरे लेक्चर के अंदर 6 टॉपिक्स अगर मैंने पढ़ाए हैं तो कोर क्या है, ये बेसिक यहाँ से शुरू होगा। कोर का मतलब क्या है, मैंने पहले बेसिक साइंसेस पढ़ानी शुरू की, किसी भी डिजीज की बेसिस क्या है, उसकी स्ट्रक्चरल एनाटॉमी, वहां से जाते जाते मैं उसको एडवांस फॉर्म में उसको लेके जाऊंगी उसकी अप्लाइड एस्पेक्ट से, फिर उसकी, ये इंटीग्रेटेड करिकुलम की बात हो रही है, फिर मैं उसके डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट पे, फिर उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे, एंड देन ट्रीटमेंट मोडालिटीज के ऊपर। सो जिस तरह आप अपने लेक्चर के कंपोनेंट्स को अलाइन करते हैं फ्रॉम बेसिक टू क्लिनिकल लेवल, अगर इंटीग्रेटेड है, अगर एनुअल सिस्टम है तो डेफिनेटली वहां पे भी आपने इसी तरह ही उसको लाइन किया होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले देते हैं, उसके बाद उसकी पैथोफिजियोलॉजी, फिर आगे आप उसकी डायग्नोसिस, फिर उसके अगर मैनेजमेंट तक आपने जाना है तो ठीक है, अगर बेसिक साइंसेज में तो उसके अप्लाइड एस्पेक्ट। सो ये तमाम एक जो कोर कॉन्सेप्ट है ये बिल्डअप होता है इन अ मॉडल ऑफ अनियन के, उसके अंदर ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और इनको एक दूसरे के साथ अलाइन होना चाहिए, ये सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हो और कनेक्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें कि मैंने पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज पढ़ानी है, अगर ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, अभी पैथोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा रही हूँ, डायबिटीज टॉपिक है, तो मैंने उसको एमसीक्यू से भी असेस कर लेना है, ईएमसीक्यू से भी कर लेना है, एससीक्यू से भी कर लेना है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कोई नहीं है, तो ये नॉलेज की असेसमेंट है। एप्लीकेशन भी अगर मैंने देखनी है तो मैं उसको थ्रू दीज 3 पैरामीटर्स असेस कर सकती हूँ। क्लिनिकल अगर मैंने साइन एंड सिम्टम्स इवेलुएट करवाने हैं डायबिटीज की, टॉपिक डायबिटीज ही है, अभी अनियन रिंगिंग के अंदर डिफरेंट उसके एक लेक्चर डायबिटीज का ही है, लेकिन अगर मैंने उसके अंदर, अब मैं क्लिनिकल कंपोनेंट वाले फेज में आ गई हूँ तो मुझे पता है कि मैं एमसीक्यू से भी कुछ चीजें असेस करवा सकती हूँ, ईएमक्यू से भी, लेकिन डेफिनेटली मुझे ऑस्की जो है वो जरूर प्लान करनी है, क्योंकि मुझे उनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मिलर पिरामिड के अकॉर्डिंगली भी देखने हैं। अगर मैंने ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे बात करनी है और हायर ऑर्डर पे मैं चली गई हूँ तो डेफिनेटली ऑस्की बहुत जरूरी है, लॉन्ग केस, सिमुलेशन, फॉर्मेटिव असेसमेंट में वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट, लॉग बुक बनी है, समेटिव में चला जाएगा, जो भी आपने उसके साथ मिनी सीएक्स का लेना है, डॉप्स का आपने लेना है, केस बेस्ड सीबीटी करनी है, तो अगर आपने ट्रीटमेंट इंटरवेंशन या केस बेस्ड डिस्कशंस वगैरह आपने स्टूडेंट की एनालाइज करनी है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए आपकी टोटल देखिए आपकी मोडालिटी चेंज हो गई है। सो इसका मतलब, और बेसिक साइंसेज में यानी डायबिटीज क्या होती है,
क्यों होती है, पैनक्रियाटिक आइल्स होते हैं उनका डैमेज होना, उसके लिए मुझे सिर्फ एमसीक्यू और एससीक्यू की जरूरत होगी। सो हर कंटेंट के मुताबिक, हर जो आपकी फेज है या हायर ऑर्डर के मुताबिक आपकी असेसमेंट मेथड जो है वो चेंज हो रहा है, ऑल्टर हो रहा है। इस चीज को रिफ्लेक्ट करना एक डायबिटीज के लेक्चर के अंदर और उसकी सीक्वेंसिंग करना, ये होता है ब्लूप्रिंट का मकसद, जो अनियन रिंगिंग में आपको शो किया था। दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट होती है, ये पहला हो गया कि आपने जो जो कंपोनेंट असेस करना है, किस इंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी से पढ़ाना है और किस तरह से असेस करना है। अब एक और चीज भी जो इम्पोर्टेंट होती है वो करिकुलर अलाइनमेंट में जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज इम्पोर्टेंस या इम्पैक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, जो या टॉपिक जो मैं पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा हूँ। मुझे ये डिसाइड करना है कि इसका इम्पैक्ट क्या है और ये कितना इम्पोर्टेंट है। उस इम्पैक्ट के लिहाज से डिफरेंट मतलब वेटेज क्राइटेरिया बने हुए हैं, जिसमें अगर हम मोर और लेस देखें तो वो कहते हैं कि ये टॉपिक क्रिटिकल है, यानी इसके बगैर स्टूडेंट पास हो ही नहीं सकता है। डायबिटीज की मैनेजमेंट क्रिटिकल है, पल्स लेना क्रिटिकल है, ये तो बहुत ही जरूरी है। एसेंशियल है, ठीक है, बहुत जरूरी आना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। इसके बगैर जो है स्टूडेंट जो है पास या फेल या बोनस पॉइंट्स को मिल सकते हैं। नीड टू लर्न का मतलब है कि जरूरत है लेकिन इसके बगैर गुजारा हो सकता है, पास इसको कर देंगे लेकिन ही नीड्स टू लर्न ऑन इट। बट इंपॉर्टेंट, एसेंशियल और क्रिटिकल वो डोमेन्स हैं जिसमें आप अगर स्टूडेंट परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप जाहिर है उसके पास या फेल को उसी वक्त डिसाइड कर लेते हैं। नाइस टू लर्न का मतलब है ये बोनस पॉइंट्स होते हैं डिस्टिंक्शन होल्डर्स के लिए, हम लोग वाइवा में और इसमें रख रहे होते हैं। हार्डेस्ट क्वेश्चन जिनको हम एमसीक्यू में रख रहे होते हैं कि ठीक है अगर आता है तो ठीक है, जिसने बहुत ज्यादा इन डेप्थ पढ़ लिया या बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव चीज पढ़ ली तो ये नाइस टू लर्न के अंदर आ जाता है, लेकिन इसका वेटेज के ऊपर या उसके क्राइटेरिया फाइनल पास और फेल होता है उसके ऊपर इतना ज्यादा इम्प्लीकेशन नहीं होता। ये एक जेनेरिक इम्पैक्ट या जेनेरिक एसेंशियल या एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया है। लेकिन एजुकेशन के अंदर, मेडिकल एजुकेशन के अंदर, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी का जो मॉडल है, जो हम ये तमाम उसमें प्रैक्टिस होता है यूनिवर्सिटीज में, सबसे इजी टू गो मॉडल है, इसलिए मैंने ये लगाया। हमारी यूएचएस के अंदर भी हम लोग इसी को फॉलो करते हैं, बट डेफिनेटली बाकी यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट होगा, तो आप उसको उसके लिहाज से देख लीजिएगा। वहां पे उन्होंने जो वेटेज है, अगर हम इसको डिफाइन करें ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज ऑफ अ टॉपिक या वेटेज ऑफ अ टॉपिक ही कह सकते हैं, कोर्स जो भी हम पढ़ा रहे हैं, किस तरह से है कि नॉन अर्जेंट है और लिटिल प्रिवेंशियल पोटेंशियल है। यानी अगर वो ऐसा टॉपिक है जो कि जिसको कंसिडर किया जाता है कि बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ठीक है, मतलब लो इम्पैक्ट का है, तो उसको हम स्कोर 1 देते हैं। एक सीरियस बट नॉट इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग जो भी टॉपिक्स होते हैं, इसको बेसिक साइंसेस में कर लें तो उसका मतलब होगा ये वो क्रिटिकल टॉपिक्स हैं जो कि ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है लेकिन ये स्टूडेंट को आने चाहिए। लेकिन अगर क्लिनिकल साइड पे देखें तो उसके लिए ये टर्म यूज होती है, उनको हम स्कोर 2 कर देते हैं। और फाइनली जो क्रूशियल या क्रिटिकल हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसके लिए मतलब कि जिसे हम पैथोलॉजी में कहते हैं कि अगर एमफिल में स्टूडेंट ने बिनाइन को मलिग्नेंट कर दिया तो खत्म है, यही हाईली क्रिटिकल है। वो इतना इंपॉर्टेंट चीज है बिनाइनेंसी को मलिग्नेंसी से डिफरेंशिएट करना, कि उसको हम कहेंगे ये 3 है। इसी तरह अब वो मलिग्नेंट के अंदर अगर वो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है या कार्सिनोमा है तो डेफिनेटली दोनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाती है, तो वो उसकी इंपॉर्टेंस में आ जाता है नंबर 3 के अंदर। इसमें चल नहीं रहा, ओके, नंबर 2 में, सॉरी। और अगर फर्दर उसको आगे से क्लासीफाई हम और हायर ऑर्डर पे करवाना चाहेंगे तो वो जरूरी नहीं है वो स्टूडेंट को आए या ना आए, लेकिन 3, 2, 1 हम इस लिहाज से डिजाइन करते हैं। और फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉपिक क्या है या फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज क्या है, कि रेयरली सीन अगर डिसऑर्डर है या ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इनको हम बुक में कह देते हैं कि ठीक है ये रेयर टॉपिक्स हैं, इनफ्रीक्वेंट हैं, उनको हम 1 वेटेज दे देते हैं। जो रिलेटिवली कॉमन होते हैं टॉपिक्स जिनको जानना जरूरी होता है लेकिन बहुत जरूरी भी नहीं होता, उनको हम 2 करते हैं। और जो वेरी कॉमन टॉपिक्स हैं, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, सिंपल हमारे पास इन्फ्लेमेशंस हो गई, डायबिटीज हो गया, ऐसा के जो वेरी कॉमन टॉपिक्स हैं उनको हम 3 देते हैं। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अ डिजीज या फ्रीक्वेंसी ऑफ डीलिंग विद सच काइंड ऑफ पैथोफिजियोलॉजी, बेसिक साइंसेज में देखें कि एक स्टूडेंट अगर है तो उससे
जब वो किसी से इंटरेक्ट कर रहा होगा तो कितनी दफा उससे ज्ञान-बारी सिंड्रोम पूछा जाएगा, कितनी दफा उससे ये जो भी हमारे पास एक रेयर कोई वायरस है उसका पूछा जाएगा, या कितनी दफा वो जो स्टूडेंट निकला है बाहर आउटपुट जो हमारा मार्केट में है उससे डायबिटीज का पूछा जाएगा। फ्रीक्वेंसी का ये मतलब है कि उसको कितना ज्यादा उसका एक्सपोजर है इस तरह के पेशेंट से, इस तरह की टॉपिक से। सो ये उसमें काउंट होते हैं। उसके लिहाज से आपने प्रिपेयर करना होता है अपने स्टूडेंट्स को। ये आर्टिकल है 12 टिप्स फॉर ग्रुप प्रिंटिंग, जिसको मैंने मतलब जिससे ये सारा मॉडल लिया है। आप काइंडली इसको खुद भी स्टडी कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, क्योंकि अभी ये 1 घंटे की प्रेजेंटेशन में या 50 मिनट्स की प्रेजेंटेशन में शायद बहुत सारी क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाएं, बट दैट वुड श्योरली हेल्प यू इन आंसरिंग मेनी ऑफ योर क्वेश्चंस। और इसको अपने पास मॉडल रखें अगर आपने अपने सब्जेक्ट का ब्लू प्रिंटिंग मॉडल डिवाइस करना है। ये एक ब्लू प्रिंट या टॉस का मॉडल है। इसमें अगर आप देखें इसी पे अगला हमारे 5-10 मिनट की जितनी भी टॉक है वो उसी के ऊपर है कि क्या होता है उसमें। सबसे पहले टॉपिक क्या कवर करना है। कॉलम 1 में हमारे पास टॉपिक आ रहा है, नंबर 2 में हमारे पास आ रहा है उसका इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट ये जिसे हमने कहा कि क्या वो बहुत सीरियस है डिसऑर्डर है, बहुत मतलब क्रिटिकल नहीं भी है, ऐसा टॉपिक है जो कि आ भी जाए नहीं भी आ जाए तब भी ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो अभी हमने कहा कि कितना उसका एक्सपोजर होगा इस तरह के केसेस के साथ उसकी रियल लाइफ के अंदर, ये फ्रीक्वेंसी 1 2 3 में यहाँ आ जाती है। फोर्थ कॉलम जो है उसमें हम I इंटू एफ इस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रीनल डिसऑर्डर का कोर्स है तो पहला टॉपिक उसका है हाइपरनेट्रीमिया, दूसरा हाइपोनेट्रीमिया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे हाइपरकेलीमिया, हाइपोकेलीमिया, सारे उसने लाइन किए हैं। उनके मुताबिक हाइपरनेट्रीमिया जो है वो एक मॉडरेट इम्पैक्ट का टॉपिक है और फ्रीक्वेंसी उसकी जो है वो लेसर फॉर्म में आ रही होती है। तो उन्होंने इसको 1 और 2 मल्टीप्लाई करके 2 कर दिया, I इंटू एफ। सो इम्पैक्ट एंड फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दैट मेक्स योर फाइनल, जिसको हम बोलते हैं I इंटू एफ मॉडल। इसको बोला भी I इंटू एफ बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रीनल पैथोलॉजी पढ़ानी है तो उसमें जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाने हैं उन सब टॉपिक्स को मैं पहले अलाइन यहाँ पे करूंगी 1 2 3 4 जिस तरह है। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इसका ये इरेज कर दूं एंड वी गो थ्रू दी दिस कि हमने अगर रीनल के जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे कवर हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये 15 या 20 जितने टॉपिक्स हैं उन सबको मैंने पहले लिस्ट डाउन कर लिया। उसके बाद मैंने हर टॉपिक का इम्पैक्ट कैलकुलेट किया। बीइंग अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, एक ग्रुप हो जाए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का, वो सारे बैठ के डिफाइन कर लें कि इसका आई क्या है और इसकी फ्रीक्वेंसी की 3 में रखनी है 2 में रखनी है। उन्होंने प्रोटीन यूरिया को यहाँ पे देखिए उन्होंने 3 के अंदर किया हुआ है कि हाईली फ्रीक्वेंट, वेरी वेरी कॉमन यूरिनरी रिटेंशन, कैलगरी का मॉडल है ना हाइपरटेंशन, उन्होंने इसको 3 में रखा हुआ है कि इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। सो INF मॉडल, जो इसका नाम भी INF होता है, उसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो टोटल स्कोर फाइनली आता है उसको वो INF स्कोर बोलते हैं। और इसका नाम भी अगर हम देखें तो इसका नाम भी INF स्कोर ही होता है। इसको थोड़ा सा ये मुश्किल है, ये प्ले उस पर हमें चलना चाहिए था बोर्ड के ऊपर, लेकिन आई हैव ट्राइड कि मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव करूं। इम्पैक्ट और फ्रीक्वेंसी को जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो INF आता है। INF की जो ये वैल्यू है अगर आप इस एरो में देखें तो ये 80 बन रही है। उन्होंने सबको पहले असाइन करके यहाँ पे असाइन करने के बाद उनको मल्टीप्लाई करके ये कुछ वैल्यूज यहाँ पे ये दे दी हैं, ये वाली वैल्यूज। सो इन वैल्यूज को जब हमने फाइनली कैलकुलेट किया इनके नंबर को तो वो नंबर बन रहा है 80। ये कैलकुलेशंस हैं, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, इसको इसी तरह से समझना पड़ेगा। 80 जो है, अब इस 80 का क्या मतलब है, 80 आपका I इंटू एफ है। और नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने हर टॉपिक का I इंटू एफ को टोटल IF स्कोर के साथ डिवाइड कर देना। मेरी बात समझ आ रही है? आई एम सो सॉरी, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर किसी को यहाँ तक समझ नहीं आई तो प्लीज पूछ लीजिए। मैम सब ये सो अभी गए ये हैं? बता रही है ना वेट के लिए इसको जो है ना यानी मीन अभी निकाल हम लिया वेट में नहीं गए, अभी हम I इंटू एफ पे रुके हुए हैं कि जहां तक अगर हमें क्लियर है कि हमने तमाम टॉपिक्स जो हैं वो पहले अलाइन कर लिए, हर एक का इम्पैक्ट निकाल लिया, हर एक की फ्रीक्वेंसी निकाल ली, उसके बाद सिर्फ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आई हर टॉपिक की, ये देखें हर टॉपिक की वैल्यू है। हाइपोनेट्रीमा की 3 2 6 है, एसिडोसिस की 3 2 6 है,
जब ये तमाम वैल्यूज आ जाएंगी, इनको एंड में कैलकुलेट प्लस करके जो वैल्यू आई है दैट इज 80। इसको हम INF स्कोर बोलते हैं, टोटल INF स्कोर। इस टोटल स्कोर में इंडिविजुअल स्कोर को इससे डिवाइड किया जाता है, तो फिर वो वेटेज बनता है। किसी भी टॉपिक का यानी हाइपरनेट्रीमिया का वेटेज क्या है? हाइपरनेट्रीमिया का वेटेज है जब उसके INF की जो वैल्यू है उसको उसके 80 या टोटल स्कोर के साथ डिवाइड करें। अगर आप फॉर एग्जांपल 2 को 80 से अगर डिवाइड करें तो आपके, अगर कैलकुलेट करके देख लें तो आपकी वैल्यू आएगी 0.025। इसी तरह ये 6 है, इसको आप 80 से डिवाइड करें, एसिडोसिस का 6 हम कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी ये 0.075। यहाँ पे हम देख लेते हैं एडीमा को। एडीमा का INF स्कोर है 3। इस 3 को हम 80 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0375। इसी तरह रीनल कॉलिक है, उसका INF स्कोर है 3 को डिवाइड करेंगे फिर 80 से टोटल स्कोर से, तो उसकी वेटेज आ जाएगी 0.0375। सो वेटेज एक वर्ड है जो बार बार बोला जाता है कि रीनल के जो टॉपिक्स हैं उनकी वेटेज क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा। तो वेटेज इज कैलकुलेटेड बाय द इम्पैक्ट multiplication of impact and frequency score and dividing it by the total INF score. I'm sorry, ये साइंस है, इसको इसी तरह से ही इस फॉर्मूला की जो पुटअप करना है। सो ये हमारे पास वेटेज निकल आया। वेटेज जो है वो क्या बताता है कि किसकी क्या वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने देखें कि यहाँ पे 0.025 वाली का मतलब ये है इसकी कम वेटेज है, उन्होंने इसके कम MCQs रखने हैं। 0.1 वाला जो है ये सबसे ज्यादा शायद लग रहा है मुझे इस पूरे के अंदर, इसकी ज्यादा वेटेज रखनी है। 0.1 इसकी भी ज्यादा वेटेज रखनी है, 0.05 की थोड़ी कम हो जाएगी और 0.025 की सबसे कम हो जाएगी। सो वेटेज के क्या बता रहा होता है कि आपने इस हाइपरनेट्रीमिया के टॉपिक में से रीनल कोर्स के अंदर कितने सवाल रखने हैं, हाइपरकेलीमिया वाले को कितनी वेटेज देनी है, हीमेट्यूरिया वाले को कितनी वेटेज देनी है। सो वेटेज का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है कि हम उससे नंबर ऑफ MCQs या नंबर ऑफ आइटम्स डिफाइन करते हैं। अब अगली और लास्ट साइंस है जो कि थोड़ी मुश्किल है, उसके बाद काम इजी है, वो ये है कि नंबर ऑफ आइटम्स जब हमने डिफाइन करने हैं कि हर टॉपिक के कितने MCQs होने चाहिए इसमें, या कितने SCQs या जो भी आपने उसमें कितने आइटम्स रखने हैं, तो फिर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपने रीनल कोर्स का एग्जाम कितने MCQs का रखना है। यहाँ से यहाँ पे तो हमने देखे ना इस वाले फोर्थ कॉलम में अगर हम देखें तो हमने इससे कैलकुलेट करके 80 बनाया था, उस 80 से हमने इंडिविजुअल स्कोर को जो है वो डिवाइड किया था। लेकिन यहाँ पे हो सकता है आपने 60 का, यहाँ पे हमने कहा हमने 60 मार्क्स का ये टेस्ट रखना है, क्लास टेस्ट है। कोई कहता है मैंने 100 का रखना है, कोई कहता है मैंने 50 का रखना है। पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आपने कितने का रखना है, वो यहाँ पे आप वैल्यू लिख दें। अगर 100 है तो ये सारी कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पे क्योंकि उनके मॉडल जो प्रिंट हुआ हुआ है उसमें 60 है तो डेफिनेटली 60 के लिहाज से। अब हमने करना क्या है, आखिरी स्टेप, कि जो हमने वेटेज कैलकुलेट की थी इस वेटेज को जितने मार्क्स का टेस्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएंगे हर वैल्यू के। यानी कि अगर मैं 0.25 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 1.5 वैल्यू आ गई है। 1.5 का मतलब क्या है कि मैं 1.5 सवाल रख सकती हूँ या 1.5 MCQ, उसको राउंड ऑफ करना होता है। अब मुझे ये, आप एज ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, अभी आपका काम है कि जो 1.5 या 1.5 सवाल आपने रखना है वो आपने डायग्नोसिस में से रखना है, इन्वेस्टिगेशन में से रखना है, ट्रीटमेंट में से रखना है या बेसिक साइंस में से रखना है। यहाँ पे टोटली डिपेंडेंट है कि आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने बैठ के देखना है कि किस टॉपिक का क्या इम्पैक्ट है। अगर तो वो क्लिनिकल टॉपिक है तो मैं डायग्नोसिस में 1 सवाल रखूंगी और बेसिक साइंसेस में यहाँ पे इन्होंने 1 रखा है। हालांकि 1 में भी आप यहाँ भी रख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको ट्रीटमेंट पूछनी है। इसी तरह हाइपरकेलीमिया में से आपने कितने, ये 60 MCQ का आपका टोटल एग्जाम है, 60 MCQ में से आपने हाइपरकेलीमिया के कितने MCQ रखने हैं। आपने इस वेटेज, जो वेटेज आया है इसका 0.1125, इसको मल्टीप्लाई किया 60 से तो आपका जवाब आ गया 6.75। यानी सबसे ज्यादा MCQ, सबसे ज्यादा आई गेस यही है, हाँ 6.75 सबसे ज्यादा वेटेज इसकी थी और सबसे ज्यादा जो है MCQ भी इसी के ही रखे जाएंगे। 6.75 को राउंड करें तो 7 है, तो देखें उन्होंने 3, 4
5, 6 और 7, ये 7 उन्होंने एमसीक्यूज बनाए और उसको डिवाइड कर लिया डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटेंट के। उन्होंने कहा हमने डायग्नोसिस में से 3 सवाल पूछने हैं, एमसीक्यू इन्वेस्टिगेशन का 1 एमसीक्यू होगा, ट्रीटमेंट के 2 होंगे और बेसिक साइंसेस का 1 होगा। इसी तरह लास्टली यूरिनरी रिटेंशन को अगर हम देख लें, मैं ऐसी जनरली देख रही हूँ, मैं येलो मेरे खास उसको चेंज कर देती हूँ ताकि हम कोई और कलर लें, कि यूरिनरी रिटेंशन अगर है उसकी वेटेज आई है 0.0375। इस 0.0375 को मैंने टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो है 60 उससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जवाब आ गया 2.25। इसका क्या मतलब है, मैं 2 राउंड ऑफ करें तो 2 एमसीक्यू रखने की मुझे इजाजत है यूरिनरी रिटेंशन वाले टॉपिक में से। अब मेरी मर्जी है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की मर्जी, वो 2 एमसीक्यू कहाँ रखे, वो यहाँ रखना चाह रहा है, यहाँ रखना चाह रहा है, यहाँ रखना चाह रहा है या बेसिक में, ये उसकी टोटल मर्जी है, या जिस तरह का आप आउटपुट लेना चाह रहे हैं। तो टोटल जब ये रीनल कोर्स जब उन्होंने फाइनली 60 मार्क्स के एग्जाम का जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने उसमें 34 एमसीक्यूज डायग्नोसिस में से रखे, 6 जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में से रखे, 12 जो है उन्होंने ट्रीटमेंट में से और 8 जो है बेसिक साइंसेज में से रखे। तो ये हर यूनिवर्सिटी का, हर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का अपना एक क्राइटेरिया होता है कि उसने 60 मार्क्स को डिवाइड कैसे किया। ऐसे नहीं है कि मतलब आई एम सॉरी टू से अन्य पेपर बन रहे होते हैं, पेपर सेटर रीजनल कोर्स दे दिया, आके जी सारे के सारे सवाल 90% सवाल डायग्नोसिस में से बना के चले गए या बेसिक साइंसेज में से बना के चले गए या सारे एक में से बनाए, या क्या किया 2 डोमेन्स पकड़ लिए और इन 2 डोमेन्स में से जो है बना के चले गए। सो टॉस का मतलब एग्जैक्टली ये होता है कि आपने हर पोर्शन के ऊपर नॉलेज, बेसिक साइंसेज है, ये एप्लीकेशन है और ये आपका हायर ऑर्डर रीजनिंग है, कॉग्निटिव लेवल के मुताबिक जो है आपने एमसीक्यूज को डिजाइन करना है। अब 1 मिनट ऑफ साइलेंस सिर्फ ये पूछने के लिए कि कुछ समझ आई है आप लोगों को? जी या मैम कुछ भी समझ आई समझ है। नहीं आई है? जी मैम, बहुत क्लियर था, आपने अच्छा समझाया, समझ आ गई है। मैम क्लियर है। इसके बारे में वाकई नहीं पता आई था ना, विल हम जो आप कह रही है ना अन्य हाँ, पेपर बनाते हैं वो ऐसे ही बहुत बन रहे हैं ऑलमोस्ट। ये बहुत अच्छी बात मैम, आपने बहुत यही बात हमें बताई जिससे हम बिल्कुल अनअवेयर थे, और ये पेपर कैसे बनता है और किस तरह से इसको करना होता है हर एक टॉपिक को कवर करते हुए। ये देखिए, ये स्पेक्स हैं जो इंटरनेशनली यूज होते हैं, इसलिए उनकी प्रोडक्ट्स इतनी प्यारी निकलती हैं। उनके डॉक्टर्स क्यों इतने, हम कहते हैं क्यों हम उस लेवल पे नहीं जाते कि हमारा जो इंजीनियरिंग गाड़ी हमने बनानी है तो हम इंटरनेशनल गाड़ी यूज कर रहे हैं, उसके स्पेक्स हैं बने हुए, हमें उसका पता है। इसी तरह ये तमाम चीजें बहुत जरूरी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर इसकी प्रैक्टिस सवाए, आई एम नॉट श्योर आगा खान में भी इसको इस तरह से किया जाता होगा, डेफिनेटली करते हैं, लेकिन इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि ये सबसे ज्यादा इजीली रिप्रोड्यूसिबल मॉडल है और सिर्फ आपको INF इसमें डिसाइड करना है, उसके बाद सारी कैलकुलेशन खुद ही हो जानी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर आप स्टेप मुझे पूछेंगे ना, या किसी को भी पूछेंगे मेडिकल एजुकेशनिस्ट को, तो वो ये कहेगा कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने इस पूरे टॉस का हुलिया भी बिगाड़ सकता है या इस पूरे टॉस को वो बेहतरीन भी बना सकता है, खूबसूरत भी बना सकता है, अगर वो इस INF को सही तरह डिजाइन कर लेगा। क्योंकि आगे आप देखें सारी कैलकुलेशन उसी बेसिस के ऊपर है, आगे उसकी कोई साइंस नहीं है, जस्ट डिवीजन है और मल्टीप्लीकेशन है। सो आपने INF बस इसको डिफाइन करना है। ये एक नॉर्मल शक्ल है, आपसे शेयर भी कर लेंगे। ये एक टोटली हमारा जो है वो मॉडल है UHS के अंदर, जिसको हमने अडॉप्ट किया होता है। हम टॉस जब बनाते हैं तो उसमें हम यहाँ पे बेसिक साइंसेस का वो एक्चुअली पेज शायद बड़ा हो गया था, वो शायद निकल गया इसके एंड में से, तो हमने उसमें से ये डिसाइड कर लिया है कि हमने, क्योंकि हम EMQ हमने आपको बताया हम नहीं फॉलो करते, तो अगर एक सवाल या एक आइटम यहाँ पे, अगर फॉर एग्जाम्पल आइटम नंबर ऑफ आइटम आ रहा है 1, आइटम का मतलब MCQ नहीं होता। अगर आपने पेपर बनाना है, आइटम का मतलब आपके पास SEQ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इस पोर्शन के ऊपर या इस टॉपिक पे सिर्फ एक आइटम बना सकते हैं, अब चाहे वो MCQ है या SEQ है या OSCE है, अब ये आपको उसको डिसाइड करना है क्रिटिकली देख के कि ये चीज बेस्ट कहाँ पे असेस हो सकती है। आपके पास एक आइटम का मार्जिन है, आपने देखना है कि अगर ये OSCE में ही हो सकता है तो आप उसको उस 1 आइटम को यहाँ पुट कर दें OSCE में, और बाकी जगह पे उसको 0 और 0 कर दें, क्योंकि वहां पे वो उस वैलिडिटी या वो जो चीज उसने असेस करनी है वो असेस नहीं कर पा रहा।
इसी तरह कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ MCQ में हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 है तो मैं उसको MCQ में 1 पुट कर दूंगी, जहां मुझे लगता है कि वो OSCE में जाना चाहिए, SCQ में जाना चाहिए, मैं वहां उसको प्लेस कर दूंगी। जहां हमारे पास मार्जिन ज्यादा है 7 MCQ का, वहां आपकी मर्जी, आप जिस तरह मर्जी इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन फिर भी देखें कि सबसे मैक्सिमम कंटेंट उस जगह पे होना चाहिए जहां उस स्किल ने सबसे ज्यादा बेस्ट जज होना है। 4 मैं अगर OSCE को दे देती हूँ, क्लिनिकल फीचर्स है, जाहिर है वो OSCE में ही जज होंगे ना, MCQ में तो नहीं होंगे। मैं उसमें से 2 शायद नहीं, एक मैं SCQ पूछ लूंगी और उसमें से 2 जो है मैं MCQ शायद पूछ लूंगी। सो आई वुड मेक 7 लाइक दिस। इसी तरह अगर मुझे कोई डिफरेंट टॉपिक लगेगा तो मैं इसमें 7 की यहाँ पे डिफरेंट तरह से अलाइनमेंट कर लूंगी। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन दी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। ये इसका लास्ट पेज या टेबल है इसी आर्टिकल का, और हमारी आज की लास्ट स्लाइड भी है। इसका हमने नाम ये रखा हुआ है द स्टेप्स फॉर मेकिंग दी ब्लूप्रिंट या टॉस। उसके अंदर ओके सॉरी, क्वेश्चन मैंने अभी देखा है EMQ extended matching question, it has been answered, thank you so much. So जो steps है, 7 steps of making TOS या blueprint। सबसे पहले defining the blueprint purpose and scope जो हमने पढ़ा। टेबुलेट द करिकुलर कंटेंट्स जो हमने साइड पे हाइपरनेट्रीमिया हाइपरकैलेमिया किए थे वो। आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट एंड फ्रीक्वेंसी, ये आपका काम है, आपने करना है, यही आपका बेसिक काम है, इसके बाद कोई काम नहीं रह गया आपका उसके अंदर। फिर आप कैटेगराइज करें, वेटेज बनाएं डिवाइड करके, उस वेटेज को मल्टीप्लाई करें टोटल नंबर ऑफ टेस्ट, जितने 60 नंबर का टेस्ट है उसके साथ, तो आपका नंबर ऑफ आइटम जो है वो डिफाइन हो जाएगा। और नंबर ऑफ आइटम्स के बाद आप असाइन करें उन नंबर ऑफ आइटम्स को जिस जिस तरह के आप MCQ, SCQ, EMQ, OSCE में असाइन करना चाह रहे हैं। सो दैट इज सिंपल एज दैट। कोशिश कीजिए कि अगर आप जस्ट अपनी नॉलेज या स्किल के लिए कोई अपना एक टॉपिक नर्सिंग का उठाएं, उसमें अपने साथ बैठे APs एसोसिएट्स को या अपने जो लेक्चरर्स हैं उनको साथ मिला के, पुलिस को मिला के एक सिर्फ ब्लूप्रिंट बना लें, और बना के जो आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ शेयर कर लें, और मुझसे शेयर करना चाहेगा आई वुड बी मोर देन हैप्पी। अगर कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं तो काइंडली प्लीज हम डिस्कस कर लें, अदरवाइज माय प्रेजेंटेशन इज लाइक ओवर, इस वक्त खत्म है। Kindly, OSCE stand for क्या? सॉरी, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड OSCE, अच्छा, ऑब्जेक्टिवली स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। हाँ जी मैम, अभी वाइवा की जगह OSCE और OSPE ही हम करवा रहे हैं ना अभी स्टूडेंट्स को। आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है? इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग CMH लाहौर। वेरी गुड, हाँ जी, बल्कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वाइवा अगर आप स्ट्रक्चर्ड जितना भी कर लें ना, यू आर वेरी राइट, वो इसका रिप्लेस नहीं कर सकता। ये तो बहुत अच्छा मॉडल है। अगर आप मतलब बिल्कुल खत्म कर दिया वाइवा? जी ऑलमोस्ट। ऑल राइट, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। सो उसमें अगर आप लोग बनाएंगे तो डेफिनेटली फिर आपके लिए आसानी होगी आगे उसको असाइन करने के लिए टॉस के अंदर। सो सजाद साहब, ये थी कि हमारा जो करिकुलम, हमें नाम्स का करिकुलम दिया जाता है ना 4 ईयर जेनेरिक BSN के लिए, तो उसमें अगर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक सिलेबस है, उसमें यूनिट्स हैं 7, तो उनके ऊपर हम इस तरह से ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। बिल्कुल बना, आप ब्लूप्रिंट किसी भी चीज के ऊपर बना सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसको आपने असेस करना है ना और टीच करना है, कुछ भी हो आप उसके ऊपर बना सकते हैं। बड़े से बड़े टॉपिक के ऊपर भी, छोटे से छोटे के ऊपर भी बिल्कुल बना सकती हैं, एग्जैक्टली इसी तरह से। जी ठीक है। और ये बल्कि इनकरेज कीजिए, अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं प्लीज अपने जितने भी आपके जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं उनको इनकरेज करें, उनमें टॉपिक्स डिवाइड कर दें, उनको ये शेयर करके कहीं इस तरह से बना के आए, और फिर कम से कम एटलीस्ट आपका जो सेंडअप तक, अभी आप प्रोफेशनल एग्जाम में बेशक ना इसको लेके जाएं, उसमें डिफरेंट कॉलेजेस होंगे, डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस चलते हैं, डाइवर्सिटी हो जाती है। एटलीस्ट जो आप क्लास टेस्ट ले रहे हैं ना, वहां से कम अपने स्टूडेंट्स के साथ इस तरह से टॉस के मुताबिक असेसमेंट शुरू करें, सेंडअप लें, और फिर उनको फाइनल में बिठाएं। आप देखेंगे उनकी इतनी जबरदस्त क्लैरिटी और ग्रूमिंग भी होगी, और स्टूडेंट को भी पता होगा उसने किस किस मोड में किस किस तरह से असेस होना है। सो असल में वही पर्पज है इसका कि क्लैरिटी मिले। जी मैम, क्योंकि उसमें से ना वो जो अननेसेसरी कुछ होते हैं क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल जरूरत नहीं होती उनकी, वो फिर स्किप हो जाएंगे इसमें ना, जब आप इम्पैक्ट और फ्रीक्वेंसी देखेंगे। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। जी सजाद साहब, थैंक यू मैम।
मैम जिसको छोटा फिर सा पता मेरा एक क्वेश्चन है, छोटा जी सा जी है वो जी जी है पूछिए तो वो एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था कि ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड जी ब्लूप्रिंट जी आया, जी दे आर सेम वर्ड्स, वी कैन दे एक्सचेंज आर वर्ड्स? जी जी बेसिकली टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन पुरानी टर्मिनोलॉजी थी टॉस। टॉस के अंदर जो है कॉग्निटिव डोमेन्स को मैं अच्छा ये जो मैं आपको बता रही थी डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट मॉडल्स यूज किए हैं। तो टॉस स्पेसिफिकेशन था जिसमें हमने अगर आप ये देख सकें सिर्फ हमने उसको जो फर्स्ट जो 3-4 कॉलम्स थे ये वाले जो हैं इनको जब तक हमने एंटरटेन करना है ना कि हमने टॉपिक्स अलाइन कर लिए और हमने वेटेज और नंबर ऑफ आइटम्स डिफाइन कर लिए ये इतना पोर्शन जो होता था ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में होता था। ब्लूप्रिंट में अब उन्होंने कॉग्निटिव लेवल यानी C1 C2 C3 हायर ऑर्डर या जो है वो ऐड कर दिया। सो अब टॉस एक तरह से खत्म हो गया है क्योंकि उसको सिनोनिमसली ब्लूप्रिंट के साथ वर्ड यूज किया जाता है। ये दोनों सिनोनिमस टर्म्स हैं। लेकिन अगर कोई आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि डिफरेंस क्या है तो जो कॉग्निटिव लेवल के ऊपर बेस्ड है दैट इज ब्लूप्रिंट और टॉस जो है इट जस्ट स्पेसिफाइज द टॉपिक एंड द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी असेस्ड एंड ऑन विच टाइप ऑफ असेसमेंट दीज आर टू बी असेस्ड। ये डिफरेंस है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। और इंशाल्लाह कोई भी अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना हो तो मैं अपना ईमेल शेयर कर लूंगी। ये प्रेजेंटेशन भी आई होप आपसे शेयर हो जाएंगी। जी थैंक यू मैम, सो मच। थैंक्स अ लॉट थैंक मैम, यू बहुत मैम, अच्छी थैंक यू सो प्रेजेंटेशन मच। थी, थैंक्स अ यू लॉट। मैम। और रिकॉर्डिंग मैम में ये शेयर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर सके किसी वजह से तो रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला मूडल पे आ जाएगी मैम। चलिए ठीक है चलिए ओके थैंक थैंक यू यू मैम, थैंक यू थैंक्स। मैम थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।